First of all, I would like to welcome everyone to the first online class on Rivet Essential Training for Beginner and Intermediate levels, which is being conducted in collaboration with Auklets. We are very grateful for them. Auklets is one of the official Autodesk partners in Pakistan, and we have collaborated with them in the past as well. The first session that we uh, were collaborated with them was in September 2019. And due to the success of that first session and a very good response by our members, we've started this official 12-session certified Autodesk Rivet 2020 class. I'm also glad to let you all know that Shile is the silver sponsor for all these 12 sessions. Now, if I would like Ramis Beg to say a few words on this, Chairman IIP Karachi chapter. Ramis. Assalamu alaikum everyone. Very happy to see you all virtually at an IIB Karachi chapter event. It's a wonderful opportunity considering that we all seem to have a little bit more time on our hands to actually use that time to learn a new skill, and why not polish up our professional skills that way. So I think it's a wonderful opportunity. I'm so happy that because of the fact that it's a virtual event and thus people have the same user experience, whether they're logging in from Karachi or they're logging in from outside Karachi. So I'm so happy to see that we've got many members of IIP, not only from Karachi, but from Islamabad, from Lahore, and other places as well. So my warm welcome to all of you. I hope this class is of tremendous benefit to you all. And now I would like to ask President IIP, Arif Changezi, to say a few words. Arif Saab. Arif Saab is coming. Just a second. Right. So as we wait for Arif Saab, I must tell you that how our experience with Auklets has been fantastic. Last time when we had the introductory session, which was about 2-3 weeks ago, and we really wanted to test out, is it possible that this training can happen virtually and not in a classroom environment? And I must say, hats off to their trainers. They've all did a fantastic job. And I think in that introduction lesson that we had, it became very clear that this class can easily be taken over online. So here we are. This is going to be 12 sessions. And hopefully by the end of it, we will find ourselves to be quite proficient with the software. Arif Saab, if you can unmute yourself, I would like you to say a few words. Mariam, why don't we watch the video? So can you play the video, and then maybe after that Arif Saab can speak? Yes, sure. Farid Saab, if you could play the style sponsor video.
Shangir Saab is on. Okay, great. Arif Saab, if you could say a few words, President IFP. We apologize for this technical difficulty that we're having at the moment. Inshallah, we will be able to hear from our dear president very soon. Over to you, Taha. If you can take over now, and maybe we can begin our session. Thank you. Okay, Assalamu alaikum everyone. I hope I'm audible to all of you. If not, then you can contact my team or just type it out in the chat and we will sort it out. Of course, you all know that it's an online session. So first of all, Bismillahirrahmanirrahim. Again, Assalamu alaikum everyone. And I thank all of you to be here in this wonderful learning experience. I especially thank to the whole IAP management team, to the whole Auklets team, to all the participants, and to our sponsors for making this particular training, inshallah, successful. Since you all know it's an online training, so it's okay if you have some sort of technical difficulty. Obviously, there are some issues and all that, but the recording is also being conducted of this session. So if you face any difficulty, so the thing can also be reminded from the recording as well. So with that, we will start our session, and you all know that it's an essential Revit training. But before starting from that particular session, before going to the depth of the Revit and all that, I just want all of you to give a small introduction and just to let you know that what sort of software which you all will be using. First of all, most of you guys were answering that which Revit version you will be using. First, know that in order to introduce BIM, in order to implement BIM, यानी आसान अल्फाज में अगर हम इसको इस तरह से समझें, just be very clear about that कि BIM जो है वो एक प्रोसेस का नाम है. I hope कि लास्ट टाइम अगर आप लोगों ने जो है वो हमारा पूरा इंट्रोडक्टरी सेशन को जो है अगर रिसीव किया था उसको, तो उसमें हमने एक चीज को जो है वो समझा था, दैट वाज दैट BIM इज अ प्रोसेस एंड Revit इज अ टूल फॉर दैट. सो आप लोगों में से जो भी Autodesk, Revit और इन तमाम सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमाइंड यू दैट यू आर यूजिंग अ टूल. अच्छा, अब the point is which tool you must be using. There are a lot of versions on Revit, so you can use any version. By the way, हम लोग जो अपनी इस पूरे क्लास या ट्रेनिंग को कंडक्ट करेंगे, so we will be conducting on Revit 2020 version. But it's okay अगर आप लोगों के पास किसी के पास कोई previous version है, या अगर किसी के पास कोई higher version है, जैसे Revit 2021 भी हो सकता है. I myself have installed in my PC, but I'll be just conducting the whole session in Revit 2020 because for the time being, जो सबसे stable version है अभी तक Revit का, वो 2020 जो है वो आपके पास market में available है. So इसी के साथ जो है वो हम लोग start करते हैं, and I'm just sharing my screen with all of you. Let me know कि अगर आप लोगों को जो है वो मेरी screen जो है वो दिखाई दे रही है. Okay, here we go. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है वो Revit से पहले थोड़ा सा आप लोगों का एक इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो चीज आप लोग सीखना चाह रहे हैं, जो आप लोग पर्पस के लिए इस क्लास में मौजूद है, आप लोगों को क्लियर हो कि व्हाट यू विल बी लर्निंग फ्रॉम ऑल दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम BIM के हवाले से बात करें, दैट व्हाट इज BIM, क्योंकि Revit को सीखने से पहले हमें BIM को जो है वो पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज it's also a hot topic in the market for some time, and most of you might have heard about this word, and it's just a usual word these days. The point is कि BIM को implement कैसे करवाना है, और actually BIM को मतलब हमने जानना है कि what actually BIM is. तो आप लोग मतलब I'll share with you these links. Autodesk पे जाके आप लोग BIM के बारे में स्टडी कर सकते हैं. Obviously हमारा ये जो सेशन है, Revit को जो है वो ज्यादातर उसको फोकस करेगा. That is why I'm not going in the depth of the BIM, but just to be sure that BIM is actually a smart process. And what the smart process is, it is actually you can call it the intelligent 3D model based process. Okay, as Autodesk is also defining it.
तो आप लोग इस वेबसाइट पे जाकर काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिम के हवाले से भी, और इस इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है वो बिम किस तरह से आपको जो है वो हेल्प कर सकता है। यू कैन ऑलवेज सॉर्ट इट आउट लाइक BIM फॉर आर्किटेक्चर क्या है और किस हवाले से आप लोग इसमें जाकर यू कैन learn a lot of stuff from there as well. Since this is out of our topic and our session, that's why I'm just not going in that depth, but I'm just telling you that you can always go here and find out some amazing BIM projects and some amazing BIM experiences as well. Okay, so हम लोग जो है वो start करते हैं अपना Revit से, Autodesk Revit से ही, और if you can see my screen, ये जो है वो हमारे पास Revit का जो है वो opening view है, starting view है. On the right side you can see your models and your family tabs, and on the left side you can see the models and the families. Now just to be precise, ये जो आपका models का जो view है, यहाँ पे आपके तमाम recent models जो है वो आप लोगों के पास मौजूद होंगे. अच्छा, इन तमाम चीज़ों पे आने से पहले just I want to suggest you that it's always advisable कि जो भी आप sessions attend करें वो आप अपने laptops पे कीजिए, क्योंकि हम लोग इस पूरे जो हमारा टोटल थ्रू द कोर्स है, वी विल बी डूइंग सम इंटरेक्टिव सेशंस एंड सम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एज वेल. इट्स सॉर्ट ऑफ अ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, सो आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है फॉर द ड्यूरिंग द सेशन किसी चीज की प्रैक्टिस करने की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एडवाइजेबल कि आप लोग अपने जो लैपटॉप्स हैं उन पे इन सेशंस को कंडक्ट कीजिए. सेकंड इज दैट ऑलवेज ट्राई समथिंग टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. Like if you are even taking the session from the laptop, then do have some notebook with you and sit in a quiet place where you can avoid distraction as well, ताकि आप लोग अपना maximum time जो है वो उसमें deliver कर सकें. तो ये कुछ चीजें जो हम लोग इसमें थ्रू आउट द सेशन में जो है वो हम देखेंगे भी. और दूसरा ये कि एक मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जब भी आप लोग सेशन के एंटर हुआ करें तो अपना काइंडली जो ऑडियो जो है आप उसको जो है वो एक बार क्रॉस चेक कर लिया कीजिए कि कहीं वो आपका ओपन तो नहीं है, वरना वो बैकग्राउंड वॉइसेस जो है वो उसमें मतलब जो है वो सेशन को अक्सर जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती है. तो काइंडली मेक श्योर दीस फ्यू थिंग्स एज वेल एज योर ऑडियो एंड एज वेल एज योर वीडियो, बिकॉज इस पूरे ट्रेनिंग के दौरान हमें कोई ऑडियो और कोई वीडियो की जरूरत नहीं होगी. हम जस्ट स्क्रीन शेयरिंग पे अपना सेशन को जो है डिलीवर करेंगे. तो मैं जस्ट जल्दी से जो है वो आई वोंट टेक मच ऑफ माय टाइम बिकॉज यू नो इट्स एन इंट्रोडक्टरी सेशन. और वन मोर थिंग लास्टली कि ये सेशन बिल्कुल इसेंशियल ट्रेनिंग है, मतलब ये जो हमारा पूरा कोर्स है ये इसेंशियल ट्रेनिंग का है. सो मोस्ट ऑफ यू माइट बी वर्किंग ऑन Revit, मोस्ट ऑफ यू माइट बी वेरी न्यू टू Revit एंड मोस्ट ऑफ यू माइट बी एक्सपीरियंस टू Revit. तो ये जो हमारा टोटल कोर्स का वर्कफ्लो होगा ये बिल्कुल जो है वो आपका बिगनर लेवल से होगा. So if someone of you are new to Revit or someone of you all are already using Revit, then there is nothing to worry about. हम लोग इंशाल्लाह जो क्लास का स्टार्ट है वो बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो लेके चलेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जब किसी भी सॉफ्टवेयर को या उसकी जो अगेन वही बात कि BIM आपका प्रोसेस है और उस प्रोसेस को आपने अगर इम्प्लीमेंट करवाना है तो आपको मुख्तलिफ टूल्स मार्केट में मिल जाएंगे, जिनमें से आपने कुछ टूल्स का ऑलरेडी सुना भी होगा नाम. फॉर एग्जांपल आपका स्केचअप है, आपका आर्चीकैड है, बेंटले के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं. याद रखिए ये तमाम जो टूल्स हैं ये तमाम BIM को इम्प्लीमेंट करने की ही टूल्स हैं. बट चूंकि मार्केट में जो है वो ऑटोडेस्क मार्केट में लीडर है, लिहाजा वी आर मोस्टली कंसर्न अबाउट ऑटोडेस्क Revit. And since we are also at Oclets, we are also the Autodesk authorized training center. That's why we also encourage using their products. और by the way, Autodesk वैसे भी इस वक्त जो है वो इन तमाम टूल्स में मार्केट लीडरशिप जो है वो जिसको हासिल है वो Autodesk को है, लिहाजा we are more focused on Revit. So अगर जो है वो हम बिल्कुल स्क्रैच से आते हैं तो आप लोग अपने पास Revit स्टार्ट करते हैं तो ये आपका जो ओपनिंग व्यू है ये आपके पास ओपन हो जाता है where you can search for these models. मैंने कुछ मॉडल्स को पहले से खोला हुआ है तो ये मेरे पास कुछ मॉडल्स पहले से आ रहे हैं, जबकि आप लोगों के पास हो सकता है बिल्कुल जो है वो सैंपल फाइल्स का जो है वो यहाँ पे टैब आ रहा हो. दूसरी चीज ये अगर आप नीचे चले जाएं तो फैमिलीज जो है वो उसके जो है वो मतलब रिसेंट फाइल्स होती हैं. हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि व्हाट आर द फैमिलीज. फिलहाल जो है वो मैं इस पर्टिकुलर वर्ड पे जो है वो नहीं जा रहा, और हम लोग आज के सेशन में मोस्टली जो कंसर्न होंगे वो प्रोजेक्ट्स के हवाले से होंगे.
ओवर द राइट हैंड साइड यू कैन गो टू द ओपन टैब। ओपन टैब में जाके अगर आप पहले से किसी फाइल पे वर्किंग कर रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज ओपन दैट, और अगर आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज गो ओवर हियर एंड यू कैन ओपन अ न्यू फाइल। उसके नीचे अगर आप देखें तो फैमिलीज के हवाले से जस्ट स्मॉल में आपको इसका एक सिर्फ अगर आपको कोई कंफ्यूजन इससे ना क्रिएट हो जाए तो जस्ट उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि फैमिलीज बेसिकली रिविट में जो या बिम में जो रिविट की इन्वायरमेंट में जो फैमिलीज का मतलब है वो ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हैं उसमें जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली फैमिलीज कहलाती हैं। लेट्स से आप इस रूम में इस वक्त बैठे हुए हैं तो आपके रूम के आसपास अगर आप देखें तो टेबल है, चेयर्स हैं, फैन है, लाइट्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज हैं, तो ये तमाम चीजें जो रिविट की लैंग्वेज में कहलाती हैं ये फैमिलीज कहलाती हैं, और इन तमाम फैमिलीज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलके एक प्रोजेक्ट बनाता है। तो आसान अल्फाज में इफ दैट्स अंडरस्टैंडेबल टू यू, तो जो फैमिलीज को क्रिएट करने वाली चीज होती है वो रिविट की आप समझ लें एडवांस चीज, मतलब एडवांस उसकी जो है वो पर्सपेक्टिव में चला जाता है। जो इनिशियल उसका पर्सपेक्टिव होता है वो होता है आपका बेसिक जो मॉडल और प्रोजेक्ट की जो चीजें उनको क्रिएट करना। तो इस थ्रू आउट द कोर्स में हम लोग फैमिलीज के हवाले से कम डिस्कस करेंगे, बट नो दैट अगर आपको फैमिलीज को जो है वो अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट को और उसकी इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करना जो है वो आना चाहिए। तो इसी के साथ जो है वो मैं चलते हुए न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं। जब भी आप लोगों ने कोई न्यू प्रोजेक्ट अपने पास क्रिएट करना है, बिकॉज हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जो है वो बिल्कुल लेट से हम लोग बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट जो है वो अपने पास क्रिएट कर रहे हैं, तो जस्ट इसको जो है वो ध्यान से समझिएगा कि हम किस तरह से थ्रू आउट द एनवायरनमेंट की तरफ जो है वो जाते हैं रिविट में टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। याद रखें रिविट में जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कोई ना कोई टेम्पलेट फाइल होती है। अब ये टेम्पलेट फाइल का क्या मतलब है, यू ऑल नो दैट जब भी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो उसके मुख्तलिफ डिजाइन डिसिप्लिन होते हैं। आर्किटेक्चर डिसिप्लिन है, स्ट्रक्चर्स है, एमईपी का डिसिप्लिन है, आईसीटी डिसिप्लिन है, फायर डिसिप्लिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी हैव अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो जो आपका रिविट में जो काम होता है वो हायरार्कियल लेवल में इस तरह से होता है कि हर डिसिप्लिन की अपनी एक अलग टेम्पलेट फाइल होती है और हर डिजाइनर या जो भी मॉडलर है वो उस पर्टिकुलर टेम्पलेट फाइल में जाकर और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑल ऑफ यू आर माशाल्लाह आर्किटेक्ट्स, तो ऑब्वियसली आपका जो सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो आर्किटेक्चरल टेम्पलेट का ही होगा, बट स्टिल अगर आप लोगों में से कोई थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स में भी काम मतलब कर चुके हैं या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ी बहुत इस हवाले से चीजें आती हैं या एमईपी के हवाले से कुछ चीजें आती हैं, तो डोंट माइंड टू एक्सप्लोर दीज अदर टेम्पलेट्स एज वेल। अच्छा, अब सबसे ज्यादा जो कॉमन इशू आता है जब आप लोग सॉफ्टवेयर नया अपने पास इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के दौरान जो है वो सबसे जो समझ लें कि सबसे ज्यादा इशू जो मैंने आज तक स्टूडेंट्स में फेस किया और तमाम लोगों में फेस किया जो होता है वो ये होता है कि वो गलत टेम्पलेट फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने रिविट को सही तरह से इंस्टॉल किया है अपने पास तो ये टेम्पलेट फाइल्स आप लोगों के पास हमेशा सही आएंगी और हमेशा लोड हो जाएंगी। तो अगेन मैं अब फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी गलत टेम्पलेट में आ भी जाता हूँ तो वो मुझे किस तरह से पहचानूंगा मैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई मुख्तलिफ मैं कोई डिफरेंट टेम्पलेट लेट से जो है वो अपने पास जो है वो इसमें यहाँ लोड करवा के जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज सामने आए। इस वक्त मैं इंपीरियल यूएस इंपीरियल टेम्पलेट में हूँ और अगर मैं इसमें मैट्रिक टेम्पलेट में आ जाऊँ फॉर एग्जांपल लेट से और मैं इसको ओपन करवा लूँ, तो जैसे ही मैं अब इस टेम्पलेट को ओपन करवाता हूँ तो यू माइट सी कि इसके एक फ़र्क तो ये है कि इसके एलिवेशन के मार्क्स में जो है ये फ़र्क है, ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। तो जो मैंने पहले आपको प्रोजेक्ट खोल के दिखाया था जो उसका एलिवेशन मार्क्स थे वो ट्रायंगुलर थे और इसके जो मार्क्स हैं वो नॉर्मली बबल टाइप के जो है वो मार्क्स होते हैं। दूसरा अगेन आप अगर वॉल में जाते हैं तो देखें वॉल जो है वो इसकी मिलीमीटर्स में आ रही हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को बड़ा तंग करेगी कि जब भी आप कोई चीज़ फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्रिएट करने के दौरान आपको मिलीमीटर्स में उसके यूनिट देगी, तो ये चीज़ आपको बड़ा डिस्टर्ब कर सकती है और आप लोग इसमें वंडरिंग कर रहे होंगे कि कहीं आप गलत टेम्पलेट में तो नहीं आ गए। तो ये सबसे कॉमन फीचर है पहचानने का कि इफ़ यू आर इन द रॉन्ग टेम्पलेट। अगेन आप यूनिट्स में आ सकते हैं, यूनिट्स की शॉर्ट की भी है UN, अगर आप अपने पास कीबोर्ड में UN दबाते हैं तो ये आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट यूनिट्स में ले आएगा और अगर आप इधर देखें तो आपकी लेंथ मिलीमीटर और स्क्वायर मीटर और ये आपको सिंपली बता रहा है कि आप लोग इस वक्त मैट्रिक सिस्टम में जो है वो आ चुके हैं। ओके,
तो इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, मतलब किस तरह से आप लोग अपने पास टेम्पलेट्स वगैरह को देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई गलत टेम्पलेट लोड हो भी गया है तो इस वक्त जो है वो मैं आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पे जाता हूँ। जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन टेम्पलेट अभी थोड़ी देर पहले वहां से ब्राउज करवा के ओपन करवाया था, तो मैं जस्ट आप लोगों को इस चीज के लिए जो आप लोगों की कंफ्यूजन है सिर्फ इसको क्लियर करने के लिए मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ओपन कर रहा हूँ और ये इस वक्त मेरे पास सही टेम्पलेट ओपन हुआ है, क्योंकि देखें आप इसकी जो आपका एलिवेशन मार्क्स हैं, ये आपका जो ड्राइंग व्यू है इसमें एलिवेशन मार्क्स जो आपके पास मौजूद है, इन एलिवेशन मार्क्स को आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर है। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गो इन द फाइल टैब, इन द फाइल टैब यू हैव टू कम इन द ऑप्शंस टैब। इन द ऑप्शंस टैब आप लोग हमेशा अपने पास फाइल लोकेशंस पे आ सकते हैं और फाइल लोकेशंस पे आके जरा देख लें कि आपकी फाइल्स कौन कौन सी लोड हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फाइल है जिसका पाथ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका पाथ क्या है, तो पाथ पे जाते हैं आप, तो ये इसके बाद एक मतलब जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन करने का यहाँ पे आपके पास टैब ओपन हो जाएगा। इसको आप जैसे ओपन करेंगे तो ये आपको बता देगा कि यहाँ से आपने फाइल को लोड करवाया हुआ। तो अब देखें ये यूएस इंपीरियल की फाइल है। आप लोगों के पास मसला ये हो सकता है कि वो शायद किसी यूएस मैट्रिक की फाइल को यहाँ पे मतलब जो है वो अपने पास दिखा रहा हो। तो आपने जस्ट करना ही है कि अगर वो यूएस मैट्रिक में है तो अपने आप को मतलब इसको अप करके वापस यूएस इंपीरियल में आए और यूएस इंपीरियल में आके उस फाइल को सिलेक्ट करवा दें और उसको ओपन करवा दें। तो ये जो है वो आपके पास यहाँ पे फाइल जो है वो मतलब लोड कर देगा। अगेन मैं डिलीट करके दोबारा आपको एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे अब इस मेरे पास कोई आर्किटेक्चर टेम्पलेट है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने पास ऐड करवाता हूँ। ऐड में मैं जाके इसको डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट जो होता है ये नॉर्मली आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूज होता है। तो डिफॉल्ट में जाते हैं आप और यूएस इंपीरियल में आप मौजूद हैं। याद रहे कि यूएस इंपीरियल भी है, यूएस मैट्रिक भी है और जेनेरिक भी है। तो इसमें आप लोग काफी कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आप इसको सही तरह से, अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड ना करें। तो मैट्रिक के बजाय हम लोग इंपीरियल में चाह रहे हैं, तो यूएस इंपीरियल, इसमें मैं आके डिफॉल्ट ये फाइल ले लेता हूँ जो कि नॉर्मली आर्किटेक्चर फाइल होती है, इसको मैं ओपन करवा लेता हूँ। और अब इसका नाम ये डिफॉल्ट दे रहा है, मैं इसको डिफॉल्ट के बजाय इसको कह देता हूँ आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। ठीक है, नाम तो वो कोई भी हो जाएगा, नाम का मसला नहीं है। और इसको पिक करके आप ऊपर कर लें, यहाँ से आप इसको ऊपर कर सकते हैं और इसको एक बार ओके करवा दें। तो अब जब आप अपने पास फाइल और अगर इसको क्लोज भी कर दें, क्लोज करने के बाद अब आप वापस जब न्यू जाएंगे तो ये वापस से आर्किटेक्चरल टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा। तो काइंडली ये सब आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा कि जिनके पास अगर टेम्पलेट का कोई इशू आ रहा है तो वो इस चीज को जो है वो प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो है आप लोगों के पास जो है वो ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा, अब एक नया सवाल इससे उठता है कि अगर किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा मैट्रिक का और इंपीरियल का, तो वो क्या करें? तो अब उसका हल ये है कि आपको फिर जो आपकी जो डाउनलोडिंग है ना वो सही नहीं हुई है, उसमें मसला हो गया आपकी डाउनलोडिंग में। और उसका मोस्टली जो उसका रीजन होता है वो ये होता है, या तो इनकम्प्लीट डाउनलोडिंग हो जाती है, या तो फिर आप किसी अनट्रस्टेड सोर्स से यानी क्रैक सॉफ्टवेयर की तरफ जाते हैं और वहां से जो है वो डाउनलोडिंग करते हैं। बट अगर आप ओरिजिनल सोर्स पे भी हैं तो वहां से भी ये मसला हो सकता है। अगेन आप अपने पास फाइल लोकेशंस को जो है वो फिर आपको ब्राउज करना पड़ेगा और वहां से जाकर आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप किस तरह से आ सकते हैं। जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये उन लोगों के लिए जो है वो ये जो इस वक्त मैं चीज बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिनके पास ये फाइल लोकेशंस ही नहीं आ रही हैं, मतलब ये ना इंपीरियल आ रहा है या कोई और चीज भी नहीं आ रही है। तो मैं न्यू पे जाता हूँ, इस वक्त आर्किटेक्चरल टेम्पलेट पे चला जाता हूँ। मैंने आपको जैसे बताया कि ये आज की इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो आप लोग नॉर्मली फेस कर रहे होंगे, ताकि पहले आप वो ट्रबल शूट कर लें, ताकि जब हम बाकायदा लेक्चर्स की तरफ जाएं और बाकायदा मॉडलिंग स्ट्रेटजीज की तरफ जाएं तो आप लोगों को उन चीजों से डील ना करना पड़े। तो मैं वापस फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाके ऑप्शंस पे जाता हूँ, ऑप्शंस पे जाके फाइल लोकेशंस पे जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल लेट से आप लोग अपने पास यहाँ आ रहे हैं और चले मैं आप लोगों के लिए ये करता हूँ, मैं डिलीट ही कर देता हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए, ताकि ये आप लोगों को मतलब समझ में आ जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, सारे डिलीट कर नहीं सकते आप, एटलीस्ट एक रखना पड़ता है। तो अब मैं जब इसको यहाँ सब डिलीट कर दूंगा ओके। और अब आप लोगों के पास नॉर्मली इशू ये हो रहा होगा कि जब आप फाइल में न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आप लोगों के पास कुछ आता ही नहीं होगा यहाँ पे आर्किटेक्चरल या इस तरह से। मोस्ट ऑफ यू माइट बी हैविंग दिस सिचुएशन एज वेल। तो मैं आप लोगों को उस सिचुएशन का हल बता रहा हूँ। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो इन द फाइल। अच्छा, रिविट तो ओपन हो जाएगा आपका, वो मसला नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी टेम्पलेट हो ही ना, वो जेनेरिक ऑटोमेटिकली वैसे ही आ जाता है उसमें। आपको ऑप्शंस में जाना है,
ऑप्शन में जाके फाइल लोकेशंस, और जब आप फाइल लोकेशन को फॉर एग्जांपल लोकेट करेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को किसी ऐसी जगह पे ले आए जहाँ पे वो मतलब फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे ले आए, या इस तरह का भी कुछ सिनेरियो हो सकता है। तो लेट से आप उस फाइल लोकेशन का पाथ भूल गए, तो अब उसका फाइल लोकेशन का जो पाथ है उसका जो है वो याद रखने का क्या तरीका है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। व्हाट यू नीड टू डू इन दिस पीसी, जो भी आपका पीसी है, और उसमें जाकर आपने अपनी उस ड्राइव में जाना है जिस ड्राइव में आपने ऑटोडेस्क रिविट को इंस्टॉल किया है। तो मैंने विंडोज सी में किया है। विंडोज सी में जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो याद रखिएगा कि आपकी जो हिडन फाइल्स हैं वो ओपन हो, तो उनमें जैसे ये आपको दिखा रहा है ये आपकी हिडन फाइल्स हैं, ये ओपन है, तो इसमें आपको जो है वो अपने प्रोग्राम डेटा, एक हिडन फाइल है, इसमें जो है वो आपको आना होगा। आप प्रोग्राम डेटा में आ जाएं। जैसे ही आप प्रोग्राम डेटा में आएंगे तो यहाँ पे जो है वो आप अपने पास आ जाइए, मुख्तलिफ आपके प्रोग्राम्स का डेटा होगा जो भी आपके पीसी में इंस्टॉल्ड है, उसमें आप ऑटोडेस्क पे आ जाइए। ऑटोडेस्क पे जैसे आप आएंगे तो ऑटोडेस्क पे नीचे आके यहाँ पे आपके पास आरबीटी फाइल होती है। ये आरबीटी फाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे पर्पस के लिए, याद रखिएगा। चाहे वो आपकी फैमिली के टेम्पलेट्स हों, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स हों, चाहे वो आपकी बिम की लाइब्रेरीज हों। अभी हम इसको समझेंगे कि बिम लाइब्रेरीज क्या होती हैं, अभी आगे जाके हम इसको देखेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर जो होता है वो आरबीटी फोल्डर होता है। अच्छा, जो भी आपने वर्जन रिविट का इंस्टॉल किया है, मेरे पास दोनों वर्जन इंस्टॉल्ड है, लिहाजा ये दोनों बता रहा है, लेकिन मैं अपने पास यहाँ आरबीटी 2020 की फाइल में आ जाता हूँ। जैसे ही मैं रिविट आरबीटी 2020 की फाइल में आता हूँ तो यहाँ पे मैं अपने पास देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ टेम्पलेट्स हैं, और टेम्पलेट्स में आके मैं वापस उस लोकेशन में आ सकता हूँ। तो अगर किसी के पास ये टेम्पलेट्स का आ ही नहीं रहा है तो काइंडली वो इसको ट्राई आउट कीजिएगा। मैट्रिक में आके देखेंगे तो ये मैट्रिक के टेम्पलेट्स हैं, इंपीरियल में आके देखेंगे तो ये इंपीरियल के टेम्पलेट्स हैं। तो यहाँ मैं इंपीरियल में आता हूँ, इंपीरियल में आके मैं डिफॉल्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे मतलब मैंने डिफॉल्ट को सिलेक्ट किया, अब ये मेरे पास वो डिफॉल्ट वाला टेम्पलेट जो है वो यहाँ दिखा रहा है। अब ये इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ रीनेम कर देता हूँ, और ये एक्चुअली मेरा हो गया आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, और मैं इसको यहाँ पे करके ओके कर देता हूँ। जैसे ओके करता हूँ फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ अपने पास। क्लोज करने के बाद अब मैं जब फाइल में देखें न्यू पे आऊंगा तो अब मेरे पास ये आर्किटेक्चरल टेम्पलेट यहाँ पे आ गया। सो दिस इज द वे यू कैन सॉर्ट दिस पर्टिकुलर इशू आउट। अगेन आपने जैसे अभी किसी ने मुझे बताया चैट में भी कि जेनेरिक है अगर किसी के पास, तो उनका यही तरीका है कि आप लोगों ने अपने पास फाइल लोकेशन में जाना है, फाइल लोकेशन में जाकर जेनेरिक से बाहर आकर इंपीरियल में जाना है, इंपीरियल में जाकर वो फाइल को जो डिफॉल्ट है, जो आर्किटेक्चर की डिफॉल्ट फाइल है उसको सिलेक्ट करना है और वहां से उसको रीनेम कर देना है। तो अगर किसी के पास भी ये इशू होता है तो दैट्स द ओनली प्रोसेस दैट यू कैन डू दैट। अच्छा, हिडन फाइल्स को टर्न ऑफ कैसे करना है, तो उसका तरीका यही है कि आप लोग अपने पास दिस पीसी में आके, विंडोज सी में आके, और आई गेस यहाँ पे आप व्यू में आ जाएं, और व्यू में आके ये हिडन आइटम्स हैं इसको आप चेक कर लें। मेरे ख्याल है जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो ये तमाम हिडन फाइल्स को याद रखें। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा था, तो इसमें आपकी हिडन फाइल्स ओपन होना जरूरी है। अगर ये हिडन फाइल्स ओपन नहीं है तो देखें वो आपको नहीं दिखाएगा। यहाँ पे हिडन आइटम्स को आप चेक कर लें तो ये अब आपको प्रोग्राम डेटा वाला जो फोल्डर है ये आपको यहाँ से दिखा देगा। आई होप इट मेक सेंस। तो अब जो है वो हम वापस जैसे हमने अपना ये टेम्पलेट्स का जो है वो इशू रिजॉल्व कर लिया, एंड आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई होगी कि हमारे पास मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं। अब अगर आप ब्राउज पे जाते हैं तो देखें आपके पास और भी आपके पास जो है वो टेम्पलेट्स हैं। तो अब जैसे अगर किसी के पास सिर्फ आर्किटेक्चरल टेम्पलेट ही है तो जरूरी नहीं है सिर्फ आर्किटेक्चरल टेम्पलेट आप अपने पास रखें। आप वापस से अपने पास फाइल लोकेशन में आके ऑप्शंस में आए, फाइल लोकेशन में आके और फर्दर आप टेम्पलेट ऐड करवा लें। जैसे स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफॉल्ट, अगर आप लोगों में से कोई स्ट्रक्चर पे काम करता है तो आप इसको यहाँ पे लिख लें स्ट्रक्चरल टेम्पलेट। ओके, तो इस तरह से आप अपनी जो है वो पूरी हायरार्की बना सकते हैं जो मैंने बनाई हुई थी। अभी मैंने डिलीट कर दी थी थोड़ी देर पहले, मैं वापस कर लूंगा सेशन के बाद ये। तो काइंडली मेक श्योर कि ये चीज जो है वो आप लोग अपने पास इंश्योर कर लें। ओके, तो जैसे ही आप अपना रिविट का एनवायरनमेंट ओपन करते हैं तो एनवायरनमेंट ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का व्यू जो है वो शो होता है, जिसमें ये मिडिल में आपका एक्चुअली ड्राइंग एरिया होता है जहाँ पे आप मेजॉरिटी अपनी जो ड्राइंग की चीजें वो कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैं जस्ट क्विकली आपको इसका इंटरफेस बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हैं वो एक्चुअली क्या उसका बिहेवियर है।
तो सबसे पहले जो आप अगर अपने टॉप पे देखते हैं तो टॉप पे देखेंगे तो ये आपका एक आर मतलब सिंबल है और ये आपका बेसिकली जो फाइल टैब है उसको जो है वो डिलीट करता है, यानी कि ये आपका सॉफ्टवेयर एक तरह से कहते हैं इसको कहते हैं आप सॉफ्टवेयर बार। ओके, सॉफ्टवेयर बार से मुराद ये है कि यहाँ पे आपकी जो है वो फाइल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपको शो कर रहा होता है। नेवरदलेस इसके अलावा ये जो तमाम जो आपके पास टैब्स होते हैं ये आपके रिबन टैब्स कहलाते हैं। ओके, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील और इस तरह से मुख्तलिफ मेरे पास इस वक्त टैब्स लोडेड हैं, तो ये तमाम टैब्स इस वक्त मुझे दिखा रहा है, ये रिबन टैब आपका कहलाता है। ओके, इसके अलावा आपके पास ये जो इसके जो आर का सिंबल है इसके बराबर में ये जितना भी आपके पास तमाम टैब्स हैं ये आपके पास कहलाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अच्छा, इस क्विक एक्सेस टूल बार में आपके पास वो चीजें होती हैं जो आप लोग क्विकली एक्सेस करते हैं, जैसे सेव का ऑप्शन हो गया, 3D व्यू में जाने का ऑप्शन हो गया, कोई सेक्शन ड्रॉ करने का ऑप्शन हो गया, इस तरह की चीजें जो है वो यहाँ पे आपके पास बता रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप बिल्कुल अपनी एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें तो ये आपका मतलब इंफॉर्मेशन बार होता है और यहाँ पे आप मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कि आपका प्रोजेक्ट का लाइसेंस वगैरह क्या है और आप अपना अकाउंट अगर आपने मतलब ऑटोडेस्क का अकाउंट है तो आप उसको साइन इन भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे साइन आउट और मतलब ये तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। हेल्प वगैरह ले सकते हैं आप यहाँ से जाके अगर आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एसेंशियल स्किल वीडियोस यानी ऑटोडेस्क की अपनी भी कुछ आप जाकर कभी भी वीडियोस देख सकते हैं अगर किसी चीज़ में स्टक हो जाए। ऑब्वियसली हमारा जो कोर्स होगा वो इन तमाम चीज़ों को कवर करेगा, बट स्टिल फ्यूचर में अगर आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रखना चाहें सो यू कैन ऑलवेज डू दैट। ओके, अच्छा, अब इसकी हायरार्की ये है कि हर रिबन टैब मतलब हर एक डिसिप्लिन का टैब है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, स्टील, सिस्टम्स का टैब है जो कि नॉर्मली MEP वालों के हवाले से जो है वो ये यूज होता है। तो मैं जस्ट बारी बारी इनकी बहुत प्रिसाइजली इनको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रिबन टैब आपकी किन कमांड्स को जो है वो कैरी कर रहा होता है। तो सबसे पहले अगर आप आर्किटेक्चर टैब में जाते हैं तो आर्किटेक्चर टैब में बिल्ड का टैब है जिसमें आप तमाम बिल्डिंग से रिलेटेड चीजें हैं जो कि वॉल, डोर्स, विंडोज इनको प्लेस करना, कोई कंपोनेंट को प्लेस करना, कर्टन वॉल्स ऐड करना, सीलिंग्स, रूफ्स और फ्लोर्स को क्रिएट करना, ये तमाम चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके अलावा सर्कुलेशन टैब में आपकी जो स्टेयर्स और रेलिंग्स के हवाले से जो चीजें हैं वो आपकी ज्यादातर यहाँ पे उसकी चीजें यूज हो रही होती हैं। मॉडल से मुराद ये है कि वो चीजें जो कि टेक्स्ट और लाइन्स से रिलेटेड हो जो कि आपके मॉडल में रहे, तो मॉडल लाइन, मॉडल टेक्स्ट के हवाले से चीजें होती हैं। रूम्स में आपके रूम्स एंड एरिया टैब में आपके जो रूम्स और स्पेसेस के एरियाज हो गए, उनके नेम्स हो गए, उनके टैग्स हो गए, ये तमाम चीजें आप मैनेज कर रहे होते हैं। ओपनिंग्स टैब में आप जितनी भी आप देखते हैं बिल्डिंग में ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स को जो है वो मुख्तलिफ तरह से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली आपके पास 5 डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें आप ओपनिंग्स वगैरह दे सकते हैं और ये डिपेंड करता है कि किस चीज में आप ओपनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा डेटम टैब होता है, डेटम टैब में आप बेसिकली ये जो आपकी ग्रिड्स और लेवल्स को क्रिएट करने वाली चीजें ये आ जाती हैं। और लास्टली आपका वर्क प्लेन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त रिविट में, और वो ये है कि आपको पता हो कि विच वर्क प्लेन आर यू वर्किंग ऑन। तो हम इसको डिस्कस करेंगे जब हमारा टाइम आएगा इस चीज के हवाले से, आप अपनी वर्क प्लेन के हवाले से चीजों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, बाकी टैब्स में मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आप लोगों का ज्यादातर आर्किटेक्चर से ही काम है, स्ट्रक्चर और स्टील और MEP से आपका काम होगा नहीं, बट स्टिल आप लोग इसमें देख सकते हैं या स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें जो है वो लगाने, मतलब स्ट्रक्चर के हवाले से जो चीजें हैं, रीइंफोर्समेंट हो गई या फाउंडेशंस, बीम्स, कॉलम्स वगैरह, ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ पे आप लोग प्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे मॉडल कर सकते हैं। अच्छा, जो आर्किटेक्चर टैब में जो आपकी ज्यादातर जैसे आपने देखा था मॉडल के हवाले से चीजें, मॉडल टैग्स, ओपनिंग्स और ये तमाम चीजें, तो ये चीजें आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ओपनिंग का भी टैब है, यहाँ पे डेटम का भी टैब है, वर्क प्लेन का भी टैब है। तो ये चीजें रिपीट हो रही हैं। इसकी रेपिटेशन की वजह ये है कि आप अपने हिसाब से इसका ये जो रिबन है ना इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप अगर आर्किटेक्ट हैं और आपका स्ट्रक्चर का काम और MEP का काम नहीं है तो आप इस स्ट्रक्चर और स्टील और ये सिस्टम वगैरह ये जितने भी टैब्स है ना जो आप समझते हैं कि आपके लिए अननेसेसरी है, आप इनको हाइड करवा सकते हैं, आप इनको ऑफ करवा सकते हैं। वो मैं अभी बता देता हूँ आपको किस तरह से करवा सकते हैं। मैं जैसे इसका एक क्विकली ओवरव्यू दे दूं। स्टील टैब है, स्टील टैब बेसिकली अगर आपने रिविट 2019 में जो है वो स्टील टैब इंट्रोड्यूस किया था ऑटोडेस्क ने, और अगर आप लोग 2019 और उसके हायर वर्जन अगर आप अपने पास यूज कर रहे हैं तो आपके पास ये स्टील टैब जो है वो प्रेजेंट होगा। अगर आप लोग 2017 या 18 और उससे प्रीवियस वर्जन में है तो ये स्टील टैब मोस्ट कॉमनली आप लोगों के पास यूज नहीं होगा। ये बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए मतलब ये बहुत बड़ी इनोवेशन है ऑटोडेस्क रेविट में स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए। सिस्टम्स टैब में जाके आप तमाम MEP का काम कर सकते हैं जिसमें आप यहाँ पे HVAC से रिलेटेड तमाम चीजें
मतलब जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डक्टिंग वगैरह जो भी होती है आपकी एयर टर्मिनल्स और जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं। अगर आप राइट साइड की तरफ आते हैं तो आपके प्लम्बिंग से रिलेटेड जितना भी काम है, मैकेनिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड जो आपके कूलिंग टावर, हीटिंग टावर, उस तरह की चीजें हैं, मतलब टोटल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ वो जो आपका मैकेनिकल सिस्टम होते हैं किसी भी बिल्डिंग में, तो वो उस तरफ चला जाता है। एक्चुअली ये फायर की तरफ भी आ जाता है, जो कि आपका फायर का डिसिप्लिन है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन की तरफ आते हैं तो ये तमाम आपके पास इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यहाँ पे आपकी चीजें जो है वो मतलब शो हो रही होती हैं। ज़ाहिर है अभी इनकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज ऑब्वियसली ये चीजें आप लोग अपने पास तो यूज नहीं करेंगे, बट जस्ट यू माइट नो कि ये चीजें भी रिविट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए वो इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को मैं आज थोड़ा सा आपको मतलब इसका आइडिया भी दूंगा कि आप लोग इंसर्ट टैब का किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। और अगेन मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को रिपीट करूं कि जो नॉर्मल हमारा वर्किंग का प्रोसेस होता है वो यही होता है कि क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें जो है वो दे देते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स के बाद हम अपना जो बिल्कुल प्लानिंग का वर्क है वो कैड पे स्टार्ट कर लेते हैं। कैड पे मतलब उसके बाद हम उसकी डिटेलिंग की तरफ जाते हैं, फिर 3D मॉडल्स बनते हैं या मुख्तलिफ टूल्स यूज करते हैं। स्केचअप माइट भी आप लोग स्केचअप यूज करते हो, और मार्केट में बहुत सारे टूल्स आप लोगों के पास अवेलेबल हैं जिनके लिए आप 3D मॉडलिंग के लिए जो है वो यूज करते हो। तो ये हमारा नॉर्मली वर्कफ्लो होता है। याद रखिएगा कि बिम में आने का मकसद ये नहीं है कि कैड से आप बाहर ही आ गए। आप कैड और रिविट दोनों को एक साथ लेकर चल सकते हैं, और इस चीज को ऑटोडेस्क ने भी अंडरस्टैंड किया है। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में कैड बिल्कुल बंद कर दें और अगले दिन पूरी टीम को अपनी ऑन बोर्ड जो भी आपकी टीम है उसको आप जो है वो रिविट पे शिफ्ट कर लें। दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू चेंज। तो उस चेंज को मैनेज करने के लिए आप लोग अपना मतलब मैनेजमेंट इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपका इनिशियल वर्क है वो आप कैड पे करके, और फिर डिटेलिंग का जो काम है वो आप अपने पास रिविट में आकर, और 3D मॉडलिंग का जो काम है वो आप रिविट में आकर प्रोसेस कर सकते हैं, जिसकी मैं आज आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने जस्ट किसी भी कैड के प्रोजेक्ट को लेकर गेट स्टार्ट मतलब कर सकते हैं। तो इंसर्ट के टैब में ज्यादातर बाहर से आने वाली रिविट में चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं चैट्स पे कुछ क्वेश्चन ले लूं, जो कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑल्दो माय टीम इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि जो आपके इनके आंसर दे रहे। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जेनेरिक और ऑस्ट्रेलियन अगर आप लोगों के पास ही आ रहा है तो मैं आपको उसका एक हल ये बता देता हूँ। मैं अभी क्लास एंड होने से पहले मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप जाकर लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास सही लाइब्रेरीज डाउनलोड नहीं हुई हैं तो वो जाके ऑटोडेस्क से मतलब ऑटोडेस्क की वेबसाइट से जाकर अपने पास लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है वो आप लोगों के ग्रुप पे भी जो है वो शेयर कर दूंगा। यूनिट के हवाले से मैं दोबारा एक चीज रिपीट कर दूं तो मॉडिफाई में जाते हैं, मॉडिफाई में मैनेज टैब में जाते हैं। मैनेज टैब में जाके आप अपने पास प्रोजेक्ट यूनिट्स पे आ जाते हैं। तो ये जो है वो आपका यूनिट्स यहाँ से आने का जो है वो तरीका है। अदरवाइज आप अपने पास शॉर्ट की UN भी दबा सकते हैं। तो अगर आप अपने पास UN दबाते हैं तो वो भी आपको प्रोजेक्ट यूनिट्स में ले आएगा। ओके, UN इसकी शॉर्ट की है, ये आपको प्रोजेक्ट यूनिट्स में जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इसके अलावा मैं जस्ट एक क्वेश्चन मेरे पास है कि आई एम नॉट श्योर दो वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। एग्जैक्टली जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं इसी चीज़ के बारे में बता रहा था कि हम दूसरे जो लिंक्स वगैरह हैं ये चीज़ इसको मैं यहाँ आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कि जैसे आप लोग जो है वो अपने आप लोग तो आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब कोई स्ट्रक्चर्स का जो है वो स्ट्रक्चर टेम्पलेट पे काम कर रहा है, फिर MEP वाला उस टेम्पलेट पे काम कर रहा है। तो बाय द एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लिंक ऑल दोस लिंक्स, you can link together all those models and you can have a complete model. ओके, यानी कि एक तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तमाम मॉडल्स को। ये बिम का वर्कफ्लो होता है। तो जो आर्किटेक्चर मॉडल है, स्ट्रक्चर मॉडल है, MEP मॉडल है, ये एट द एंड ऑफ द डे ये तमाम एक दूसरे में मतलब इंटीग्रेट हो जाते हैं और आपको एज अ होल मॉडल जो है वो मतलब जो है वो एज अ डिलीवरेबल जो है वो मिलता है। और वो यहीं से, जैसे मैंने आपको इंसर्ट का बताया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे लिंक ऐड करवा सकते हैं, लिंक रेविट करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप इन ऑप्शंस को हम जब एक्सप्लोर करेंगे तो ये चीजें उसमें आपको समझ में जो है वो उसके हवाले से जो वो आएंगी। ओके, अच्छा, ये जो आपका एक मेरे पास क्वेश्चन है कि कर्सर ऑन माय रेविट
कर्सर ये जो आपकी ये मार्क्स है ये एलिवेशन मार्क्स हैं, ओके। ये एलिवेशंस कहलाती हैं, यानी अगर आप किसी पे क्लिक भी करेंगे तो ये आपकी बेसिकली बिल्डिंग एलिवेशंस हैं। साउथ एलिवेशन है, ये आपके पास जो है वो बिल्डिंग की मतलब नॉर्थ एलिवेशन है, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ एलिवेशन है। तो ये इस तरह से आपका जो है वो प्रोसेस है। तो अगर अभी भी आप लोगों के पास किसी के पास बबल में आ रही है तो वही मसला है उनके पास कि वो टेम्पलेट जो है वो आपने उसका गलत लोड करवा लिया है। तो आई आस्क माय टीम के वो आपको इसमें काइंडली चैट में जो है वो इसको जो है वो सपोर्ट कर दें कि वो किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ओके, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि जस्ट आपने करना ये है कि आप जो है वो अपने पास सही टेम्पलेट लोड करवा लें और जैसे ही आप सही टेम्पलेट लोड करवाएंगे वो मसला आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हम एनोटेट टैब में आ जाते हैं। तो एनोटेट टैब में आप देख सकते हैं तो ज्यादातर कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो जितना भी काम है वो यहाँ पे यूज मतलब वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगी। इसमें डायमेंशंस लेना, स्पॉट एलिवेशंस लेना, लीनियर एंगुलर डायमेंशन लेना। अच्छा, मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग ऑन कैड एज वेल, तो ये चीजें आपको मतलब क्वाइट कन्वीनियंट होंगी और ये चीजें आप लोग पहले से समझते भी होंगे। ओके, इसके अलावा डिटेलिंग करने के हवाले से यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के हवाले से, और इसके अलावा आप देख सकते हैं टैगिंग वगैरह करने के हवाले से चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी एक समझ लें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब्स ऑफ रैबिट। एनालाइज टैब, अगर आप लोग बिम की डायमेंशंस का, अगर आप लोगों में से किसी ने वर्ड सुना हो, देयर आर डायमेंशंस ऑफ बिम, और डायमेंशन ऑफ बिम का मतलब ये है कि काइंडली आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा किसी का मतलब माइक जो है वो ओपन ना हो, किसी की ऑडियो जो है वो ओपन ना हो, बस कुछ वॉइसेस जो है वो बैकग्राउंड में जो है वो हमारे पास आ रही हैं, तो काइंडली मेक श्योर कर लें। ऑल्दो आई एम ट्राइंग। ओके, सो हमारे पास बिम की डायमेंशंस होती हैं जिसमें हमारे पास 3 डायमेंशनल बिम जस्ट 3D मॉडल क्रिएट करना हो गया, 4 डायमेंशनल बिम जिसमें हम लोग अपनी टाइम को जो है वो लिंक कर देते हैं अपने 3D मॉडल के साथ। इसके अलावा 5th डायमेंशन ऑफ बिम होती है जिसमें हम लोग बेसिकली कॉस्टिंग की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा 6th डायमेंशन में आप लोग जो है वो एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो एनालाइज टैब है, ये एनालाइज टैब याद रखें कि ये बिम की 6th डायमेंशन को अचीव करने के लिए यूज होता है। और ओके, और ये जो आपकी 6 डायमेंशन, अच्छा तहरीम आपने जो है वो ज्वाइन किया है, तो काइंडली आई विल रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप जो है वो अपना जो माइक है, स्पीकर है, उसको काइंडली होल्ड या उसको जो है वो म्यूट कर लीजिए। ऑल्दो मैं उसको यहाँ से म्यूट कर रहा हूँ लेकिन वो बार बार ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो रहा है। थैंक यू। ओके, सो जो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें हैं, ऑल्दो वो स्ट्रक्चर एनालिसिस हो, वो लाइटिंग एनालिसिस हो, वो आपका बिल्डिंग का एनर्जी एनालिसिस हो, मैं खुद पर्सनली वर्क कर रहा हूँ बिल्डिंग के एनर्जी एनालिसिस पे, और आई नो के हाउ मच दिस इज अ बिग थिंग नाउ के जो सस्टेनेबिलिटी है और सस्टेनेबल डिजाइन अचीव करना, तो उसके हवाले से यहाँ पे आप चीज़ों को अचीव अपने पास कर सकते हैं, जिसमें एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन है। अगर ऑटोडेस्क इनसाइट का आप लोगों ने नाम सुना हो तो ऑटोडेस्क इनसाइट के कुछ प्लगइन्स मैंने अपने पास रखे हुए हैं, तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ द कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू गाइस कि आप किस तरह से इन तमाम चीज़ों को अपने पास अचीव कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल मासिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास रेविट में, यानी कि जब आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आप अपना कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो है वो उसका सबसे पहले जो है वो कोशिश ये करते हैं कि आप अपना कॉन्सेप्चुअल डिजाइन जो है वो उस बिल्डिंग का करें और उस पर्टिकुलर फैसिलिटी का करें। तो यहाँ पे आप तमाम कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि मासिंग एंड साइट है। इसके अलावा जितनी भी आपकी टोपोग्राफी हो गई, और इसके अलावा जो साइट बिल्डिंग कंपोनेंट्स, साइट के कंपोनेंट्स यानी प्लांटेशन वगैरह हो गया, उस तमाम चीज़ों को यहाँ पे आप आकर जो है वो अपने पास मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा साइट से रिलेटेड चीज़ें जैसे प्रॉपर्टी लाइंस और मतलब मुख्तलिफ यहाँ पे ज़्यादातर जो आप काम करेंगे वो 2 चीज़ों से ही करेंगे, एक आपकी कॉन्सेप्चुअल मासिंग हो गई, दूसरी आपकी टोपोग्राफी वगैरह की से रिलेटेड जो चीज़ें हो गई। कोलैबोरेट टैब अगेन मैं पर्सनली जो है वो जो ये कोलैबोरेट टैब है इसको मैं पर्सनली रेफर करता हूँ कि ये समझ लें आपका हार्ट ऑफ द रैबिट है। उसकी वजह ये है कि दिस इज द टैब विच एक्चुअली अलाउज ऑल ऑफ यू टू कोलैबोरेट। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो बैकग्राउंड में हो रही है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इसको रिजॉल्व कर लूँ। ओके, अगेन
सो ये जो आपका कोलैबोरेट टैब है, इसमें ज़्यादातर आप जो चीज़ें अपने पास मतलब देखेंगे वो कोलैबोरेशन से रिलेटेड है, और बिम का जो सोली पर्पस है वो कोलैबोरेशन ही है। मतलब जो कैट से बिम में आने की जो मतलब आप समझ लें रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन की जो इंकरेजमेंट है वो उसकी वजह ही आपकी कोलैबोरेशन है कि विद द हेल्प ऑफ बिम यू कैन कोलैबोरेट टुगेदर विद द डिज़ाइन टीम्स। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर टैब में आप जो है वो मुख्तलिफ मॉडल्स को कोलैबोरेट आपस में एक दूसरे से कर सकते हैं, आप अपने सेंट्रल मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी एक कॉमन सी बात है, एक हमारा डिज़ाइन ऑफिस कराची में है, एक डिज़ाइन ऑफिस किसी का यूएई में है, तो जो यूएई की टीम है वो कराची की टीम से कैसे कोलैबोरेट करे, जो कराची की टीम है वो यूएई से कैसे अपना जो प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का जो प्रोसेस है वो आपका यहाँ इस पर्टिकुलर कोलैबोरेट टैब में आके जो है वो आपका इजी हो जाता है। और वी हैव सम ऑप्शंस टू कोलैबोरेट, इधर हम अपनी इंटरनल टीम में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, हम BIM 360 और इसके अलावा मुख्तलिफ क्लाउड सॉल्यूशंस हैं, उन क्लाउड सॉल्यूशंस पे आके भी जो है वो आप अपने पास कोलैबोरेशंस को जो है वो कर सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस टैब इन डिटेल इंशाल्लाह। इसके अलावा व्यू टैब क्या हो गया, आवाज ही नहीं आ रही। ओके, इसके अलावा जो आपका टैब है वो व्यू टैब है। व्यू टैब में आकर आप अपनी तमाम व्यू से रिलेटेड चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और याद रखिएगा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैब है। जिसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे किसी का प्रॉपर्टीज़ का टैब और ये प्रोजेक्ट ब्राउजर का टैब जो है वो ये आपका नहीं आ रहा, आपने रिविट को ओपन किया और ये आप लोगों के पास इस तरह से नहीं आ रहा, ओपन नहीं हो रहा, तो अब आप लोग इसमें मतलब वेयर यू कैन फाइंड कि ये किस तरह से वापस आप स्विच ऑन करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि ये आपका जो व्यू टैब है इसमें यूजर इंटरफेस पे आके, और यूजर इंटरफेस पे जो जो चीजें आपकी चेक हुई हुई हैं, इसका मतलब ये आपकी इस वक्त प्रोजेक्ट में आपको दिखाई दे रही हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टीज इस वक्त अनचेक है, मैं जैसे इसको चेक करूंगा तो ये प्रॉपर्टीज मेरे पास यहाँ आ गई। इसी तरह से आप अपने पास आके इसको वापस से प्रोजेक्ट ब्राउजर का जो टैब है इसको क्लिक कर लें तो ये प्रोजेक्ट ब्राउजर आपका इस तरफ जो है वो आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें आपकी यूजर इंटरफेस से रिलेटेड जो है वो यहाँ से आपके पास हो रही होती है। इसके अलावा टाइल व्यूज, टैब व्यूज, ये मैं अभी इंशाल्लाह आपको जब इसका मॉडल की जो पूरी आप कर लें नेविगेशन करना जब हम सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से विंडोज को आप वर्किंग कर सकते हैं। शीट कंपोजिशन करना, 3D व्यूज, सेक्शंस, कॉल आउट सेक्शंस क्रिएट करना, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। रेंडरिंग वगैरह के हवाले से आप जो है वो ऑल्दो रिविट इज नॉट वेरी गुड इन रेंडरिंग, मोस्टली हम लोग 3ds Max को यूज कर रहे होते हैं रेंडरिंग के लिए, बट स्टिल यू कैन हैव सम इनिशियल और सम वेरी फाइन लेवल मॉडलिंग इन Revit एज वेल। इसके अलावा आप अपनी ग्राफिक्स से रिलेटेड किस चीज़ों को आपने विजिबिलिटी में दिखाना है, किसको नहीं दिखाना, वो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से अपने पास जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह थ्रू आउट द कोर्स ये चीज़ें जब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना सीखेंगे तो ये आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो हमारे पास मैनेज टैब है, मैनेज टैब में आकर आप अपने पास तमाम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं उनको जो है वो पुट इन कर सकते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले ही आपको प्रोजेक्ट यूनिट्स के बारे में बताया कि यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के जितने भी यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को जो है वो अपने पास क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आया आप सही टेम्पलेट में है या नहीं। इसके अलावा आप अपने पास जो प्रोजेक्ट के पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ पे आके देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन है उस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे आके अपने पास इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन का नेम, लेट से मैं इसको यहाँ पे जाके ऑकलेट्स जो है वो दे देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन, लेट से बिम कंसल्टेंसी के हवाले से जो है हम दे देते हैं। बिल्डिंग नेम, अब अगर आप किसी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसका बिल्डिंग का जो भी नेम हो गया। ऑथर बेसिकली उसका जो चीफ आर्किटेक्ट हो गया, आप उनमें जो है वो उनका नेम इंसर्ट कर सकते हैं। लेट से बिल्डिंग नेम जो है वो आपका ABC पार्क, कोई भी आपकी बिल्डिंग हो गई। ऑथर जो है वो आपका XY, लेट से मिस्टर उसके XYZ या जो भी आप उसको जो है वो नाम देना चाहें। इसके अलावा प्रोजेक्ट की इशू डेट क्या है, प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, लेट से स्टेटस में इसके मैं फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्चुअल डिजाइन के हवाले से जो है वो हम इसको दे देते हैं। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आके आप अपनी जो है वो इनपुट कर सकते हैं। ओके, तो मैं फिलहाल इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोग अपने पास मतलब यू कैन ऑलवेज कम ओवर हियर एंड यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस पर्टिकुलर फीचर आउट। और ये आपके प्रोजेक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है ये वन टाइम इंफॉर्मेशन होती है, ये एक बार अपने पास प्रोजेक्ट में इनपुट कर लेंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोजेक्ट में तमाम व्यूज में तमाम पर्टिकुलर जगहों पे ये आपको जो है वो उसके हवाले से दिखाएगा। ओके, इसके अलावा जो आपकी एडिशनल सेटिंग्स हैं, एडिशनल सेटिंग्स में आपकी लाइन वेट्स, आपका लाइन स्टाइल्स, आपके लाइन पैटर्न्स एंड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स
So most of you might be working as at the management positions, most of you might be working at the core team positions. तो अगर आप लोग मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लर्न करना चाहते हैं तो ये ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट का टैब है ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, ये तमाम चीजें आप यहाँ पे आके एंटर कर सकते हैं। एंड लास्टली मैं जस्ट आपको एक इसका आइडिया दूंगा, डायनामो जो कि आपका विजुअल प्रोग्रामिंग का टूल है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये आप लोगों के सबके पास हो। अगर आप लोग अब रिविट के नए वर्जन्स को इंस्टॉल कर रहे हैं तो डायनामो उसके साथ आता है, लेकिन अगर आप में से कोई रिविट का प्रीवियस वर्जन को जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है तो माइट भी उनको ये डायनामो से वो फेमिलियर नहीं हो। बेसिकली डायनामो आपका विजुअल प्रोग्रामिंग का जो है वो टूल है, और इस विजुअल प्रोग्रामिंग के टूल में आप जो एडवांस मॉडलिंग की जो एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कवर कर सकते हैं। यानी बहुत सारी मॉडलिंग एस्पेक्ट्स होती हैं जो आप सोली रिविट से अचीव नहीं कर सकते, तो यू गो विद द डायनामो। एंड विद डायनामो, अब जाहिर है हम सब तो प्रोग्रामर नहीं है ना, आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी द प्रोग्रामर्स, बट विजुअल प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आप कोर कोडिंग नहीं करेंगे, जस्ट आप ग्राफिकल वे में कोडिंग करेंगे जो बड़ा फन वे है, और उसको यूज करते हुए आप अपनी जो भी डिजाइन है, जो आपके बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, उनको आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा एडेंस वगैरह से यहाँ पे आप जितना भी कोई एक्सटर्नल टूल्स को डाउनलोड करेंगे वो आपके पास यहाँ एडेंस में आ जाता है। वीरे, ये मैंने एक्चुअली ये जो टैब वीरे का टैब है ये मैंने लास्ट टाइम ही अपने पास डाउनलोड किया था। ये एक्चुअली वीरे आपकी रेंडरिंग का टूल है, ये रेंडरिंग इंजन है एक्चुअली, आप लोग इस पर वर्क भी करते होंगे। 3ds Max पे नॉर्मली हम लोग वीरे पे ही जो है वो काम कर रहे होते हैं। और अभी मेरे पास किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम रिविट का मॉडल 3ds Max पे ले जा सकते हैं, तो अगेन बिल्कुल ले जा सकते हैं। बिम का याद रखिएगा कि जो बिम है उसका सोली पर्पज ही कोलैबोरेशन है, तो जरूरी नहीं है कि बिम याद रखें किसी भी एक टूल से अचीव नहीं होता। रिविट इज इटसेल्फ नॉट बिम, बिम इज अ प्रोसेस और देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स टू अचीव दैट प्रोसेस, जिसमें वन ऑफ देम जो है वो रिविट है, और सबसे कोर जो इनमें है वो रिविट ही है। इसके अलावा जो आपके बिम के टूल्स हैं जिनमें आपका 3ds Max आ जाता है, डायनामो आ जाता है। इसके अलावा भी आप अगर नेविसवर्क्स का आपने नाम सुना हो, जो कि क्लैश डिटेक्शन के हवाले से आपका एक बहुत, और आपका मॉडल रिव्यू करने के हवाले से जो है वो टूल है, उसमें जो है वो आप यूज कर सकते हो। अच्छा, ल्यूमियन पे जो है वो आप अब एक्चुअली मॉडल तो आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन ये जो डिफरेंट कंपनीज होती हैं इनकी भी अपनी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये एक दूसरे में अपने मॉडल्स को जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो यू कैन समहाउ शेयर योर मॉडल इन एनी ऑफ द रेंडरिंग प्लेटफॉर्म जहां पे भी आप करना चाहें। बट फिर एक चीज याद रखिएगा, जो बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वो ये है कि जितना अच्छी तरह से आपका जो मॉडल की इंफॉर्मेशन है वो 3ds Max पे जाएगी, उतनी अच्छी तरह से किसी एक्सटर्नल पार्टी के टूल पे नहीं जाएगी। और ये कॉमन सी बात है। जाहिर है मेरी अपनी कंपनी है तो मैं अपनी कंपनी के सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाऊंगा कि वो बेस्ट उसका रिजल्ट्स को ले जाए। जाहिर है मुख्तलिफ कंपनी के टूल्स आपके पास मार्केट में जो है वो मौजूद है, जिसमें आपकी रेंडरिंग जहाँ पे आप जाके उसकी विजुअलाइजेशन के लिए आप अचीव करते हैं, तो उनमें ये हो सकता है फिर कि आपकी जो मटेरियल की इंफॉर्मेशन है उसमें आपको कुछ डिफिकल्टी हो, बट यू कैन टेक आउट सम टाइम एंड ट्राई इट आउट, और उसमें जाके आप जो है वो उसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो प्लान सेक्शंस जो रिविट में हैं, देखिए डायरेक्टली तो आप इसमें जो है वो मतलब डायरेक्टली यू डू नॉट हैव एनी टूल के जिसमें आप डायरेक्टली अपने प्लान सेक्शन को फोटोशॉप पे ले जाएं। अब उसमें आपको फिर उसका तरीका ये है कि या तो आप उसकी मुख्तलिफ, जैसे अभी जो है वो आपको बताया कि या तो आप उसको जो है वो PDF फॉर्मेट में ले जा सकते हैं, और इसके अलावा मतलब देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, यानी डायरेक्टली आप इसको या फोटोशॉप और किसी ऐसे टूल में जो है वो ले जा नहीं सकते। याद रखिए जितनी भी आपकी ये इंफॉर्मेशन है या जितना भी आप रिविट में मॉडलिंग का वर्क करते हैं आप एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। क्लियरली यू कैन एक्सपोर्ट दैट एंड यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम व्हिच यू कैन एक्सपोर्ट। यू कैन आल्सो एक्सपोर्ट इन द CAD फाइल, यू कैन एक्सपोर्ट एज इमेजेस। तो अगर आप फोटोशॉप पे लेके जा रहे हैं अपने किसी CAD के प्लान को, तो यू कैन हैव अ नाइस इमेज ऑफ दैट एंड यू कैन देन लाइक ओपन दैट पर्टिकुलर इमेज इन फोटोशॉप। बट फोटोशॉप की जो ये मत समझिएगा कि डायरेक्ट रिविट से ही कोई फोटोशॉप में आपकी इस तरह से डायरेक्ट फाइल चली जाए। फिर उसके कोई थर्ड पार्टी प्लगइन्स के बारे में मेरी इतनी इस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देयर माइट बी सम प्लगइन्स जो कि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हो, जो कि डायरेक्टली आपका जो काम है वो फोटोशॉप पे ले जाएं। बट आप अपना जो मेजॉरिटी काम है वो आप अपना मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स तक एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। आई होप कि ये चीज जो है वो क्लियर हो रही होगी आपको, राइट? अच्छा, इसके अलावा लास्ट जो टैब है आपका वो मॉडिफाई टैब है। और अगेन बात हुई
जैसे मैं हमेशा इसी चीज को हमेशा मतलब इंकरेज भी करता हूँ कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। स्मार्ट वर्किंग करने के लिए आपको ये जो मॉडिफाई का टैब है इसकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। और इस पर्टिकुलर टैब में आप अपने पास देख सकते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ कमांड्स हैं जिनकी मदद से आप अपने पास बेस्ट डिजाइन्स को क्विकली अचीव कर सकते हैं, जिसमें कुछ मूव की कमांड्स, कॉपी की कमांड, रोटेट की कमांड। अच्छा, मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी कि मैं अलग से कोई सेशन नहीं लूंगा जिसमें एक ही दिन आपको सारी मूव की कमांड मतलब मॉडिफाई की कमांड्स पढ़ा दी। ऑब्वियसली वो आप फौरन भूल जाएंगे। मेरी स्ट्रेटेजी ये होगी कि मैं ड्यूरिंग द मॉडलिंग प्रोसेस आपको उस कमांड की एप्लीकेशन बता दूं, ताकि जब आपको कमांड की किसी एप्लीकेशन पता चल जाएगी तो आपको वो हमेशा याद रहेगी कि ये कमांड, पर्टिकुलर कमांड किस पर्पस के लिए अचीव होती है। ओके, सो आई होप कि ये चीज जो है वो आपको मतलब क्लियर हो गई होगी, जो उसके रिबन से रिलेटेड है। काफी लॉन्ग चीज, मतलब काफी लंबी चीज ये थी, बट इसको बताने का अगेन मकसद ये था ताकि आपको पता हो कि कहाँ किस चीज की तरफ जाके आपने अचीव करना है। कोई चीज अगर आपकी मिस हो जाती है, या आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किस चीज को मॉडल करना है तो वो आपको कहाँ मिलेगी। अगेन फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आप आर्किटेक्ट हैं और आपका स्ट्रक्चर और बाकी डिसिप्लिन से आपका काम नहीं है, तो आप अपने यूजर इंटरफेस में आके और स्ट्रक्चर का टैब बंद करवा दें, सिस्टम का टैब बंद करवा दें, इलेक्ट्रिकल टूल्स का, पाइपिंग टूल्स का, और ये तमाम टैब्स को बंद करवा दें और इसको ओके कर लें। जैसे अब आप ओके करेंगे तो देखें सब आपके पास अब आर्किटेक्चर टैब रह गया, और वो स्ट्रक्चर और वो बाकी जो टैब्स हैं वो ऑलरेडी जो है वो आपके पास यहाँ से चले जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज जो है वो जो है वो इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये चीजें जो है वो मकसद, ये चीजें जो है वो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइजेशन की तरफ भी जो है वो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी भी टूल को क्लिक करता हूँ, लेट्स से मैं वॉल को क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक बार ओपन हो जाता है जिसको कहते हैं ऑप्शंस बार। अच्छा, अब इस ऑप्शन बार में बेसिकली ये याद रखिएगा, इनके वर्ड्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को अगर आप किसी जगह डिफिकल्टी फेस करें तो आपको पता हो कि कौन सा बार शो नहीं हो रहा, कहाँ से किसको शो करना है। तो ये एक्चुअली आपका ऑप्शंस बार कहलाता है। और इस ऑप्शंस बार में आप देख सकते हैं कि वॉल से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स हैं वो बता रहा है, जैसे उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी जो है वो अगर ऑफसेट देना है वो कितना होगा, उसकी लोकेशन लाइन क्या होगी, तो ये यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, ये हर पर्टिकुलर एलिमेंट से वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डोर पे जाता हूँ तो अब डोर के लिए देखें तो ये ऑप्शन बार डिफरेंट आ गया। तो ऑप्शन वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन बार फॉर एवरी डिफरेंट थिंग। जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ऑप्शन बार हो, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए कोई ऑप्शन बार ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ विंडो में जाता हूँ तो विंडो के लिए देख सकते हैं, विंडो के लिए है मतलब इसमें अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज पे जाते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको जो है वो ऑप्शन बार जो है वो यहाँ पे दे। इसके अलावा एक चीज जिसको मैं कहूँगा कॉन्टेक्चुअल टैब। कॉन्टेक्चुअल टैब का मतलब ये है कि एक ऐसा टैब जो किसी पर्टिकुलर कमांड को सिलेक्ट करने के बाद अपीयर हो। जैसे मैंने अभी वॉल की कमांड को क्लिक किया, तो जैसे ही मैंने वॉल की कमांड को क्लिक किया, देखें मॉडिफाई प्लेस वॉल्स, तो ये कॉन्टेक्चुअल टैब है। अच्छा, बाकी चीजें तो आप देखें मॉडिफाई से रिलेटेड इसमें मौजूद ही हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ड्रॉ का पैनल ऑन हो गया। तो ये ड्रॉ पैनल जो है वो बेसिकली कॉन्टेक्चुअल, मतलब ये वैसे आपको नहीं दिखेगा कभी भी ड्रॉ पैनल या ड्रॉ टूल्स, इसे आपको उस वक्त दिखेंगे जब कोई ड्राइंग से रिलेटेड आप किसी चीज को मॉडल करना अपने पास स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक तो कॉन्टेक्चुअल टैब से बाहर आने का तरीका ये है कि जैसे मैं वॉल पे आ गया तो आप अपनी एस्केप की कमांड, ये जो आपकी रिविट में, मतलब रिविट में वर्किंग करने के लिए एस्केप की कमांड जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने किसी कमांड से बाहर आना है, लेट्स से मैं वॉल पे था और मैं इस वॉल की कमांड से बाहर आना चाह रहा हूँ, तो मैं एस्केप दबाऊंगा तो ये मुझे यहाँ से बाहर ले आएगा। इसी तरह डोर की कमांड पे हूँ, डोर की कमांड से मैं एस्केप दबाऊंगा, वो बाहर ले आएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे कॉन्टेक्चुअल टैब में चले जाते हैं जिससे बाहर ही नहीं आ सकते। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ फ्लोर की कमांड पे चला जाता हूँ। अभी जो फ्लोर की आप कमांड में आ गए ना, तो अब देखें एक तो इसका पहचानने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि बैकग्राउंड आपका जितना भी है वो आपका ब्लर हो जाता है, मतलब उसमें जो है वो ट्रांसपेरेंसी मतलब वो ब्लर हो जाएगा। वो आप देख सकते हैं कि ये जो एलिवेशन मार्क्स हैं ये ग्रेइश हो गए। ओके, अच्छा, इसके अलावा आप मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स आप देखेंगे तो ये आप यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं वॉल नहीं लगा सकता, डोर नहीं लगा सकता, ये नहीं कर सकता। एस्केप की कमांड आप दबाते रहेंगे वो आपको बाहर ही नहीं लेके आएगा। देखिए मैं एस्केप दबा रहा हूँ अपने पास, लेकिन मैं वापस आर्किटेक्चर में जा रहा हूँ तो मैं यहाँ फंस गया। इस दौरान आप बड़ा फंस सकते हैं, और आप मतलब ये क्योंकि आप लोग मोस्टली न्यू होंगे रिविट में, तो आप लोग इस तरह की चीजों में फंस सकते हैं, और दैट्स टोटली ओके। बताने का मकसद ये है कि ये गलती करके ही आप सीखेंगे,
और माइट भी ये थोड़ा आपका टाइम वेस्ट करे, मतलब मेरे साथ ये बहुत बार जब हमने स्टार्ट रिविट को जो है वो सीखा था और इसके काम करना सीखा था, ऑब्वियसली दीज वर द इश्यूज दैट वी वर फेसिंग, बट विद द टाइम जब आप जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ओवरकम करते जाते हैं तो ये चीजें आपकी आसान होती जाती हैं। ये आप एक्चुअली इस वक्त स्केच मोड में आ गए हैं, इसको रिविट में कहते हैं स्केच मोड। और ये स्केच मोड आपका नॉर्मली जब आप किसी चीज स्केचिंग ऑब्जेक्ट को मॉडल करना स्टार्ट करते हैं ये उस वक्त ओपन होता है। रिविट में मोस्टली जो आपकी स्केचिंग बेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपका फ्लोर आ जाती हैं, आपकी सीलिंग्स आ जाती हैं और आपकी रूफ्स आ जाती हैं, आर्किटेक्चर टैब के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्ट्रक्चर टैब में भी आपके पास मुख्तलिफ और चीजें हैं जिसको आप स्केच करते हैं। बस मोस्ट कॉमनली ये जो स्केच मोड आप यूज कर रहे होते हैं या आप कर रहे होते हैं या रूफ, सीलिंग्स और फ्लोर्स को एडिट मतलब मॉडल करने के लिए, या अगर कोई वॉल है उस वॉल के प्रोफाइल को एडिट करने के लिए, तो नॉर्मली इन जगहों पे आप जो अपने स्केच मोड है उसको जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ओके, अच्छा जी, अब वही बात है अगेन कि इस स्केच मोड से कैसे बाहर आया जाए। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको कैंसिल करेंगे या तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। मैं अगर एस्केप दबाता रहूंगा ये मुझे बाहर नहीं लेके आएगा। तो इसका तरीका ये है कि आप अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे मोड पे आ गए या गलती से भी क्लिक कर दिया है, तो ये गलती से क्लिक करने मतलब आप अपने पास अगेन एक्सट्रीम राइट साइड पे आके देख लें कि वो मॉडिफाई क्रिएट फ्लोर बाउंड्री आ रही है, वहां पे आ रहा होगा, यहाँ से आप डिस्कार्ड कर दें। जैसे आप डिस्कार्ड करेंगे तो ये अब आपको वापस ले आएगा और अब आप वापस थोड़ा सुकून का सांस लेंगे कि अब थोड़ी चीजें जो है वो आपकी सही हो गई। ओके, तो आई होप कि ये चीजें जो है वो मतलब ये क्लियर आपको हो रही होंगी। स्टिल अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई चीज अनक्लियर हो तो यू कैन ऑलवेज प्लीज leave the message on the chat so that my team can respond you quickly. ये आपका प्रॉपर्टीज टैब है। प्रॉपर्टीज टैब में यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें अगर कोई चीज सिलेक्टेड नहीं है तो ये आपको फ्लोर प्लान की प्रॉपर्टीज बता रहा है, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो है वो प्रॉपर्टीज बता रहा होगा। ये आपका बेसिकली यहाँ पे टाइप सिलेक्टर है। टाइप सिलेक्टर से मौजूद ये है कि यहाँ मकसद ये है कि यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप की जो भी चीज है, जैसे अगर मैं वॉल के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये मुख्तलिफ टाइप की वॉल्स हैं हमारे पास जो कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ उसको। ये उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बता रहा है। इसके अलावा अगर आप नीचे आ जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है। अच्छा, रिविट का एनवायरनमेंट बड़ा यूजर फ्रेंडली है, जरूरी नहीं है आप इसको यहीं रखें, आप इसको ये डॉकेबल है, या तो आप इसको यहीं छोड़ दें या तो आप इसको डॉक करवा के इसको किसी एक साइड पे ले जाएं। तो अब ये थोड़ा खुला खुला आपको फील होगा। वो मेरी आदत ये है कि मैं इन दोनों को हमेशा एक साइड पे रखता हूँ और एक साइड क्लियर रखता हूँ, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। इसी तरह प्रोजेक्ट ब्राउजर को आप फॉर एग्जांपल अपने पास कहीं और डॉक करवा दें, लेट्स से टॉप पे डॉक करवा दें, लेकिन जब आप टॉप पे इसकी डॉकिंग करवाएंगे तो थोड़ा सा अजीब सा भी हो जाएगा। तो इट्स रिकमेंडेड कि अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट मतलब बड़ा कोई काम मतलब बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि एक तरफ आप अपना जो है वो प्रोजेक्ट ब्राउजर को डॉक करवा दें और दूसरी तरफ जो है वो आप अपना प्रॉपर्टीज के टैब को जो है वो डॉक करवा दें। तो ये इस तरह से आप अपनी डॉकिंग वगैरह इनके हवाले से करवा सकते हैं। अगेन मैंने बताया कि अगर किसी की कोई चीज फॉर एग्जांपल रिमूव हो भी जाती है तो उसका तरीका क्या है, आप व्यू टैब में आए, व्यू टैब में आके यूजर इंटरफेस में आके उस पर्टिकुलर चीज को वापस चेक कर दें तो ये आपकी वापस उसके आपको जो है वो उसको विजिबिलिटी उसकी जो है वो इनेबल कर देगा। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज टैब है, इसमें आप मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। अगर कोई चीज सिलेक्टेड नहीं होती तो ये हमेशा उस चीज की प्रॉपर्टी बताता है जो ये व्यू होगा। जैसे इसमें ये फ्लोर प्लान है तो फ्लोर प्लान की प्रॉपर्टीज बता रहा है कि उसका स्केल क्या है, उसका डिटेल लेवल क्या है वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें बता रहा है। इसकी राइट साइड पे अगर आप चले जाएं तो ये प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है, यानी कि यहाँ से आप एक्चुअली अपना पूरा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी फ्लोर प्लान्स हैं, सीलिंग प्लान्स हैं, स्ट्रक्चरल प्लान्स हैं, एलिवेशंस हैं, सेक्शंस हैं, आपकी शीट्स हैं, आपके BOQs हैं, आपके 3D व्यूज हैं, ये तमाम चीजें जो है वो आपको यहाँ पे बता रहा होता है। इस वक्त आप देखें तो कोई 3D व्यू नहीं है क्योंकि अभी हमने ऐसी कोई 3D व्यू बनाया नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें फर्स्ट क्लिक अपना 3D व्यू का करूंगा तो अब मेरे पास एक 3D व्यू क्रिएट हो गया जो कि यहाँ पे मेरे पास नाम आ रहा है 3D का। ओके, तो ये बहुत पावरफुल फीचर है बिम का कि आप अपना काम तो 2D में ही कर रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे अपना काम 2D में करता जा रहा हूँ, ये मैं मतलब सिंपली कर रहा हूँ, और इसको करने के साथ साथ जब मुझे नहीं पता मतलब ये तो सिंपल 2D वर्क चल रहा है, लेकिन अगर मैं जाता हूँ 3D में तो 3D आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उसका जनरेट हो रहा है। ये सबसे पावरफुल फीचर है बिम का कि यू आर वर्किंग इन 2D बट एट द सेम टाइम इट इज क्रिएटिंग द 3D। दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब भी आप अपना मॉडलिंग का काम करें हमेशा फ्रीक्वेंटली 3D व्यू को बार बार चेक करते रहें। ओके,
अच्छा, ब्रेक के हवाले से जस्ट मैं ये अपना इंटरफेस की जो क्लास है, मतलब ये इंटरफेस के हवाले से जस्ट आई टेक जस्ट 5 more minutes and inshallah we will have a break at 5:15, just a 10 minutes break, ताकि आप सब जो भी इन तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकें and not don't want to get too much. So उसके बाद हम जो अपनी कैट के हवाले से जो मैंने आपको बताया था उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट काइंडली मैं इसको जस्ट सम अप कर लूँ, तो इंशाल्लाह वी विल टेक अ स्मॉल ब्रेक आफ्टर दैट। सो इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपकी जो बॉटम है ये आपका बेसिकली विजिबिलिटी कंट्रोल बार कहलाता है, यानी कि यहाँ से आप अपना स्केल, आपका जो व्यू है, यानी कि कोर्स, मीडियम, फाइन, मकसद ये कोर्स, मीडियम, फाइन आपका लेवल ऑफ डिटेल को शो करता है। कोर्स का मतलब है कि बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं दिखाना, यानी कि सिंपली सिर्फ एक आउटलाइन जो है वो चीज़ की दिखाना। अगर आप इसको फाइन पे ले जाते हैं तो फाइन पे ले जाके मतलब वो एक एक इंटीरियर की डिटेल दिखाएगा। तो अभी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने ऐसी कोई मॉडल नहीं इंट्रोड्यूस किया जिसमें वो आपका कोर्स या फाइन में फर्क दिखा सके। बट जब आप इसको मॉडल करेंगे तो ये आपको यहाँ से मतलब जो है वो आपको जो है वो इसमें वाज़ेह फर्क दिखाई देगा। इसके अलावा ये इसकी विजिबिलिटी कैसी होनी है, तो विजिबिलिटी से मुराद ये मैंने वाइड फ्रेम में दिखाना है तो ये मुझे इस वक्त वाइड फ्रेम में दिखा रहा है। हिडन लाइन में दिखाना है तो ये मुझे इस वक्त इस पर्टिकुलर जगह को हिडन लाइन में दिखा रहा है। शेडेड से मुराद ये कि अब आपको शेडेड में करके दिखाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट कलर है। रियलिस्टिक से मुराद ये कि ये जो भी इसकी जो आपकी इसको आपने टेक्सचर दिया है, एक्चुअली हर मटेरियल का अपना टेक्सचर होता है रिविट में। समझते होंगे आप लोग इस चीज़ को, जब आप रेंडरिंग के लिए भी टेक्सचर्स को यूज़ करते हैं तो ये आपको ये टेक्सचर यहाँ पे दिखाता है। जैसे इस वक्त मैंने इस वॉल को मतलब इस वक्त तो इस वॉल का कोई टेक्सचर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल कोई टेक्सचर से रिलेटेड किसी वॉल की तरफ लेके जाता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि इसका बकायदा आप टेक्सचर जो है वो देख सकते हैं। ओके, तो ये देखें इसका आपका जो ब्रिक्स है उसका टेक्सचर आपको इस वॉल पे दिखा रहा है, तो ये टेक्सचर इन पे जो है वो अप्लाइड होता है। तो यहाँ से आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें आप लोग अपनी जो है वो क्रॉप रीजन कर सकते हैं, किस चीज़ को हाईलाइट करना है, टेम्पररी आइसोलेट ग्राफिक्स को देखना है। तो ये चीज़ें हम लोग फ्यूचर में मतलब डिस्कस करते रहेंगे। और लास्ट में आपका स्टेटस बार कहलाता है। ये जो लास्ट बिल्कुल आप देख रहे हैं तो ये आपका स्टेटस बार है, और इस स्टेटस बार में जो भी आपका प्रोजेक्ट का इस वक्त स्टेटस है ये आपको बता रहा होता है। बस मैं यहाँ पे इस चीज़ के साथ इस क्लास को जो है वो यहाँ पे ब्रेक को जो है वो इनिशिएट करूँगा, और वो ये है कि या रिविट में जो भी आपका यूजर इंटरफेस है वो इतना फ्रेंडली है कि कोई भी कमांड अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं हैंग हो जाता है या किसी जगह पे आप अपने आप को समझते हैं कि यू आर स्टक समवेयर, तो यू कैन ऑलवेज सीक द रिविट इटसेल्फ, उसकी अपनी हेल्प आप जो है वो ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आर्किटेक्चर टैब पे वॉल पे जाता हूँ तो वॉल पे जाने के बाद मुझे यहाँ स्टेटस बार में बता रहा है कि क्लिक टू एंटर स्टार्ट पॉइंट ऑफ द वॉल। लेट से मैं अपना स्टार्ट पॉइंट जो है वो अपना मैंने दबा दिया, अब वो मुझे स्टेटस में बता रहा है कि एंटर वॉल एंड पॉइंट, और दूसरा स्पेस क्या करेगा, उसकी ओरिएंटेशन को फ्लिप करेगा। तो ये चीज यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे जाके मैंने इसको जो है वो प्लेस कर दिया। तो ये चीज जो है वो मकसद बताने का ये है कि इसका इंटरफेस स्टेटस बार में आपको जो है वो बता रहा होता है। दूसरी चीज ये है कि आप किसी भी फॉर एग्जांपल कमांड के पास जाकर क्लिक करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन एक जो है वो आपको जो है वो दिखा देता है, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि वो आपको उसके बारे में डिटेल बता देता है। और कुछ कमांड्स ऐसी भी होती हैं जिनमें टूल टिप चलाता है। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरे पास थोड़ा सा रिविट में इशू ये है कि मेरे पास टूल टिप चलती नहीं है। तो मैं इस वक्त कॉपी की फॉर एग्जांपल कमांड में जा रहा हूँ तो वो टूल टिप जो है वो चला नहीं रहा, नीचे लिखा हुआ आ जाता है टूल टिप कैन नॉट बी प्लेड, माइट बी सम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, ये रीजन अभी तक मेरे पास से सॉर्ट आउट नहीं हो चुका। बट आप लोग अगर अपने पास आप लोगों ने रिविट को सही तरह से इंस्टॉल किया है तो आप लोग जब कॉपी की कमांड पे जाएंगे तो वो बकायदा एक छोटी सी नीचे वीडियो चला के दिखाएगा जिसमें आपको यूज करना सिखाएगा कि रिविट किस तरह से कॉपी की कमांड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इसका जो है वो इंटरफेस है। ओके, सो आई होप कि ये इंटरफेस से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आई होंगी। स्टिल अगर किसी के क्वेश्चन है मैं जरा आंसर कर देता हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस। सो 3D बार जो है वो बेसिकली आपका ये क्विक एक्सेस टूल बार में आप इसको ले अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें ये होम का ये देख रहे हैं आप छोटा सा होम का टैब है, ये आपका 3D व्यू का है। इसके अलावा व्यू टैब में जाके भी आप अपने पास 3D व्यू में यहाँ पे आ सकते हैं। तो दो तरीके हैं आपके 3D व्यू में आने के। ओके, एंड अनदर क्वेश्चन इज okay, let's take a break. Inshallah, after the break, I'll let you know again about the status bar. Okay, so see you all inshallah at 5:25 p.m. Thank you so much.
ओके, वेलकम बैक। चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो अच्छा, मेरे पास बिफोर द ब्रेक कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, और स्टिल मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं फर्स्टली उनको आंसर कर दूं, देन विल गो विद द फ्लो। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टेटस बार के हवाले से मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हाउ टू हैंडल दिस स्टेटस बार। अच्छा, स्टेटस बार में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप देख लें तो वो तो ग्रे आउट होती हैं, यानी कि ये आपकी जब चीज़ें ओपन होंगी, लेट्स से ये आपकी कोलैबोरेशन के हवाले से, वर्क सेट्स के हवाले से जो है वो यहाँ पे टैब है, तो ये जब ओपन होगा जब आप अपनी कोलैबोरेशन को इनेबल करेंगे। इस वक्त आपका प्रोजेक्ट स्टैंड अलोन है, कोलैबोरेटेड नहीं है, यानी कि सिंक्रोनाइज नहीं है। तो स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स में आपको मोस्टली ये ग्रे आउट रहेंगी क्योंकि कॉन्टेक्चुअल है। इसके अलावा डिजाइन ऑप्शंस का इसमें एक ऑप्शन होता है, यानी कि इस वक्त मैंने कोई डिजाइन ऑप्शंस क्रिएट नहीं किए, तो ये भी मेरे पास इस वक्त इनेबल ही आ रहा है। यहाँ पे आपका बेसिकली स्टेटस बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल के जैसे मैंने मिसाल दी थी वॉल को क्रिएट करने की, तो अगर मैं वॉल की तरफ जाता हूँ तो मैं इस वक्त मुझे स्टेटस बार में ये बता रहा है कि क्लिक, यानी कि मैं अगर प्लान में चला जाऊँ तो प्लान में जाकर मुझे कह रहा है कि क्लिक टू एंटर वॉल स्टार्ट पॉइंट। तो लेट्स से ये मेरा वॉल का स्टार्ट पॉइंट है। अब जाहिर है वो मुझे उसकी लेंथ बता रहा है वॉल की, और अगर आप देखें तो स्नैप भी कर रहा है मुख्तलिफ लोकेशंस पे जो उसको लग रहा है कि जहाँ तक हम रुकना चाहेंगे। दूसरा ये है कि ये हॉरिजॉन्टल, अगर देखें मैं इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चला रहा हूँ तो इस वक्त मुझे बता रहा है स्टेटस बार में कि वो वॉल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। चाहे स्पेस दबा के उसकी ओरिएंटेशन फ्लिप होने का मकसद क्या है, जैसे इस वक्त तो मैं वॉल लगा रहा हूँ जेनेरिक, लेकिन अगर मैं जेनेरिक के बजाय यहाँ पे चला जाता हूँ अपने पास फॉर एग्जांपल कोई एक्सटीरियर ब्रेक ऑन मेटल स्टड, और अब जो है वो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, इस वक्त भी आप देखें कि आपको ये मतलब ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसकी जो कोर्स लेवल है उसमें जाकर मैं इसको फाइन पे कर दूं, और अब देखें मैं इसको जाकर प्लेस करना स्टार्ट करूं, तो ये बाकायदा आप देखें एक लेयर्ड स्ट्रक्चर मुझे दिखा रहा है वॉल का, यानी कि ये वॉल मुख्तलिफ लेयर्स पे मुश्तमिल है। हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे कि वॉल की लेयर्स क्या होती हैं, लेकिन अगर आप इसको देखें तो हमने स्पेस बार दबा रहे से उसकी ओरिएंटेशन को फ्लिप कर रहा है। ओके, तो ये जो है वो मेरे पास इस तरह से वॉल को क्रिएट कर रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लेयर्स पे मुश्तमिल है ये वॉल। अगर मैं इस वॉल के क्लिक करके इसकी एडिट टाइप में जाता हूँ, तो एडिट टाइप में जाकर एडिट टाइप का मतलब ये है कि मैं इसकी टाइप को जाकर एडिट कर रहा हूँ, और अगर इसके प्रीव्यू में जाता हूँ तो ये मुझे इसकी एक्चुअली लेयर्स बता रहा है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में जाके एडिट पे चला जाता हूँ तो ये इसका मेरे पास पूरा लेयर्ड स्ट्रक्चर आ रहा है, जो कि हम इंशाल्लाह जब हम वॉल्स को बाकायदा डिटेल में सीखेंगे तो इनको हम करना सीखेंगे कि किस तरह से आप लेयर्ड स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, राइट। तो ये एक्चुअली आपका मकसद था कि ये आपका जो है वो लेवल ऑफ डिटेल कितना उसको दिखाना है डिटेल में, वो उस व्यू को सेट करता है। तो लेट्स से अगर मैं इसको कोर्स कर देता हूँ तो कोर्स करके अभी मुझे जस्ट एक सिंपल उसकी आउटलाइन दिखाएगा, लेकिन अगर मैं जाके इसको फाइन कर देता हूँ तो अब नाउ इट विल शो मी ईच एंड एवरी डिटेल। डायनामो से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे पास डायनामो से रिलेटेड आया था, तो डायनामो में बेसिकली इस वक्त मैं गया नहीं हूँ, मैं डायनामो को मैंने जस्ट ये समझ लें कि इस वक्त सरफेस से इसको टच किया है। डायनामो बेसिकली विजुअल प्रोग्रामिंग टूल है, यानी जब आपने कोई दो जगहों पे ज्यादातर डायनामो जो है वो आपका यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कोई कॉम्प्लेक्स कर्व्स को अचीव करना चाह रहे हो, कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन को अचीव करना चाह रहे हो, बट नेवरदलेस ज्यादातर जो आपका डायनामो यूज होता है वो किसी रेपिटेटिव टास्क को आसान बनाने के लिए या ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पे आपका फॉर एग्जांपल एक 40 स्टोरी बिल्डिंग है, और 40 स्टोरी बिल्डिंग के तमाम जितने भी रूम्स हैं, मतलब एक ही उसकी तरह आपका जो टिपिकल प्लान है फॉर एग्जांपल, और उसके तमाम आपने जितने भी रूम्स हैं उनको रूम्स को कोई टैग असाइन करना है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप उसकी 40 स्टोरी बिल्डिंग के हर व्यू में जाकर आप उसको एक नाम देंगे पर्टिकुलर, और उससे टैग्स असाइन करेंगे। व्हाट यू कैन आल्सो डू, आप डायनामो की उसमें मदद ले सकते हैं और डायनामो ऑटोमेट कर सकता है इस प्रोसेस को। इसके अलावा हम लोगों ने अपने पास डायनामो को बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया है, फॉर बीओक्यूज के हवाले से काफी एक्सटेंसिवली यूज किया है। यानी याद रहे कि डायनामो की वजह यही है कि जब बिम का, यानी कि जब ऑटोडेस्क ने रिविट को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, तो हर कंपनी के अपने अलग मसले हैं, हर कंपनी के अपने इश्यूज हैं। यानी कि एक हद तक तो आपका रिविट में वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अब किसी कंपनी का कोई ऐसा मतलब समझ लें कि बहुत ही कोई कस्टमाइज ऐसी चीज उन्होंने क्रिएट करनी है कि जो रिविट के नॉर्मल एनवायरनमेंट में हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो फिर उसके लिए ऑटोडेस्क ने क्या किया, डायनामो को आपको दे दिया कि भाई अगर कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स कर्व है या कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, आप डायनामो की मदद से उसको यूज कर लें। और
ऑनेस्टली आप यू कैन जस्ट थिंक एंड यू कैन डू दैट विद डायनामो। तमाम चीजें आप डायनामो की मदद से यूज करते हुए उसको जो है वो अपने पास कर सकते हैं। मोस्टली हम रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए डायनामो को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ओके अच्छा, आगे मेरे पास एक और वही क्वेश्चन आया है कि आप आर्किटेक्चर टेम्पलेट यूज करने के बाद भी आपका ये राउंड आपका शो हो रहा है, तो उसकी वजह यही है कि ये जो आपने आर्किटेक्चर टेम्पलेट अपने पास लोड करवाया हुआ है, जो फाइल लोकेशन में जाके आप इसको जो है वो ये आपका आर्किटेक्चर टेम्पलेट में आप जहाँ हैं, ये आपका यूएस इंपीरियल के बजाय ये आपका जो आर्किटेक्चर टेम्पलेट लोडेड है वो आपका यूएस मैट्रिक वाले का डिफॉल्ट जो है वो लोडेड है। तो आपने करना ये है कि आप जैसे इसके ब्राउज पे आए वो आपको इधर ले आएगा, आप इसको बैक करें, बैक करने के बाद आप यूएस इंपीरियल पे आके और यूएस इंपीरियल पे आके उसका जो इंपीरियल का जो आर्किटेक्चर है उसको डिफॉल्ट ओपन करवा लें, तो ये आपका जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके सो ये चीजें जो है वो हम लोग इसको आप जो है वो एक बार और अपने पास जो है वो प्रैक्टिस करके देख भी लीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को जिनको फाइल लोकेशंस का और इनकी लाइब्रेरीज का मसला हो भी रहा है, तो मैंने वेबसाइट आप लोगों के लिए ओपन की है। आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर फाइल ऑन यू ऑन द ग्रुप एज वेल। तो यहाँ से जाके अगर आप लोगों की कोई लाइब्रेरी या कोई पर्टिकुलर टेम्पलेट्स मिसिंग है तो वो आप यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो मेरे पास Revit 2020 है, तो मैंने जाकर Revit 2020 का कंटेंट जो है वो डाउनलोड किया है। अदरवाइज आप जाकर अपने पास Revit अगर आप फॉर एग्जांपल 2021 यूज कर रहे हैं तो आप जाकर 2021 के डाउनलोड्स में जाकर और डाउनलोड उसका कंटेंट कर सकते हैं। तो आप अपने यहाँ पे Revit 2020 में अगर देखें तो इंग्लिश यूनिट्स में है ये इंपीरियल फैमिली टेम्पलेट्स के अलावा मैट्रिक फैमिली टेम्पलेट्स। अच्छा ये तो फैमिली टेम्पलेट्स हैं, इसके अलावा आप यहाँ नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपको उनकी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। तो उन लाइब्रेरीज में आपका जो टेम्पलेट फाइल्स है वो भी आप लोगों के पास मतलब जो है वो उसमें कवर अप हो जाएंगी। तो यहाँ से आप आके ये तकरीबन 1.1 GB का पूरा सेटअप है, तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लें, तो ये इंशाल्लाह जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन है उसमें जाकर ये फाइल्स को इंस्टॉल भी कर देगा। मेरे पास तो ये इंस्टॉल्ड है, लेकिन आप यहाँ से जाकर इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके तो ये मैं लिंक जो है वो आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि ये आप अपने पास फ्यूचर करस्पॉन्डिंग्स के लिए जो है वो यूज कर सकें। ओके सो एट दिस पॉइंट हम लोग इसके जो सॉफ्टवेयर है उसका यूजर इंटरफेस से अल्हम्दुलिल्लाह फेमिलियर हैं और अब हमें पता है कि हमने क्या चीज को अचीव करना है। तो अब जस्ट मैं आपको जरा इसके कुछ एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेट एक चीज मैं करके दिखाना चाह रहा हूँ, और आज जो है वो जैसे आप अपनी प्लानिंग का जो इनिशिएट है वो किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जरा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बंद कर लेता हूँ, इसका जो है वो फिलहाल मुझे कोई काम नहीं है, और मैं एक अपने पास प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ कैट फाइल्स के हवाले से। ये मैंने वैसे ही एक प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए आज बना के रखा था, ये एम्प्टी है बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट में है नहीं कुछ, जैसे कि एम्प्टी फाइल है, लेकिन जिसमें आप लोगों को डिमोन्स्ट्रेट करवाना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस तरह से रिविट पे आके अपना काम को मतलब जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ओके हम जो फैमिलीज यूज कर रहे हैं मीट्रिक में, आई एम अजमत जैदी, हम लोग जब सरिया वगैरह लेते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं और डायमेंशंस हमारी इंपीरियल में होती हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे? अच्छा उसमें से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने पास यूनिट्स में आके और आप अपने पास यूनिट से जो सरिया वगैरह की आप क्वांटिटीज बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आप दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि क्वांटिटीज के हवाले से जब आप अपना काम करेंगे तो आपको BOQs वगैरह में जो है वो इसकी क्वांटिटीज निकालनी पड़ेगी, तो आप क्वांटिटीज में जाके उसके यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं और आप अपने पास किलोग्राम्स में कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ऑब्वियसली वो आपको स्टार्ट में पाउंड्स वगैरह में दे रहा होगा उसका वेट, लेकिन आप उसको अपना जो यूनिट्स है उनको कन्वर्ट करके पाउंड्स में कर सकते हैं, उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन ये भी आप अपने पास यहाँ यूनिट्स में जाकर, और यूनिट्स में जाकर भी आप अपने पास स्ट्रक्चरल, मतलब ये तो हमने कुछ कॉमन यूनिट्स को देखा है जो कि यहाँ पे कुछ कॉमन यूनिट्स दिखा रहा है, इसके अलावा जो है वो आप अपने पास आपके पास मुख्तलिफ और यहाँ पे मतलब ऑप्शंस हैं जिनमें जाके आप रीइंफोर्समेंट के हवाले से इनमें ऑप्शंस को कवर अप कर सकते हैं। मैंने जो पर्सनली इसका जो हल निकाला था, मतलब मैं जो अपने पास जब रीइंफोर्समेंट का अगर कोई इस तरह का वॉल्यूम या या वेट निकालना होता है तो व्हाट आई डू इज BOQ में जाकर उसमें एक ऑप्शन आता है, अभी तो फिलहाल मैं उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं जा रहा BOQ क्रिएट करने की तरफ, लेकिन उसमें आप जाकर अपने यूनिट्स को चेंज करके और उसको किलोग्राम्स में कर सकते हैं। तो वो पाउंड्स में है तो वो आपको किलोग्राम में उसका जो यूनिट है वो क्रिएट करके दे देगा, दैट्स नॉट अ बिग डील, वो जो है वो आपको उसको क्लियर कर देगा। ओके
राइट, सो आई होप कि ये चीज जो है वो आपकी आंसर हो गई होगी। अच्छा, अब जो है वो मैं जैसे इसमें कैट को मैं जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि कैट वगैरह से आप अपना काम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देखें तमाम चीजें इस वक्त आप प्लान व्यू में नहीं मॉडल कर सकते। जो चीजें आप लोगों को यहाँ देखें, कुछ चीजें ग्रे आउट करके दिखा रहा है, जैसे आप प्लान में जाकर लेवल नहीं लगा सकते, तो दैट्स व्हाई लेवल इज ग्रेड आउट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ रेविट के ये सब आपको वही चीज करने देगा उधर उस पर्टिकुलर व्यू में जो आप वहाँ पे मॉडल कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो है वो अपने पास इंसर्ट टैब में आता हूँ। इंसर्ट टैब में आने के बाद इंसर्ट टैब में आके जस्ट मैं आपको एक कैड फाइल इसमें लिंक करवा के और उसकी जरा इनिशियल मॉडलिंग आपको करके दिखाता हूँ कि व्हाट यू कैन अचीव विद विम यूजिंग योर कैड फाइल्स। तो मैं जो है वो यहाँ पे, अच्छा मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक लिंक कैड है और एक मेरे पास इंपोर्ट कैड है। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं इंपोर्ट कैड पे आ रहा हूँ। और मैं अपने पास मेरे पास कुछ कैड की फाइल है जो कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो मैं आईएपी ट्रेनिंग में जाके मैंने आज की एक कैड की फाइल जो है वो ऑटोकैड फ्लोर प्लान इसको लिया हुआ है। अच्छा, मैं इसमें कुछ सेटिंग्स कर रहा हूँ, वो सेटिंग्स तो हम जाहिर है आगे भी देखेंगे, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि इसे मुझे करंट व्यू में दिखाओ और इसके जितने भी कलर्स हैं उनका कलर्स को प्रिजर्व कर सकता हूँ मैं या इन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं इसकी कलर्स को इन्वर्ट कर देता हूँ। लेयर्स तमाम दिखानी है, जाहिर है आपका कैड का काम लेयर्स पे होता है, तो या तो तमाम लेयर्स को ले आओ या तो सिर्फ वो लेयर्स ले आओ जो विजिबल हैं, या फिर मैं स्पेसिफाई करवा दूँ। फिलहाल मैं इसको कह रहा हूँ कि मुझे तमाम लेयर जो है वो उसमें ले आओ। यूनिट्स जो है वो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा, ये काफी इसका अपना फीचर जो है वो मतलब आराम से इसको डिटेक्ट कर सकता है। पोजीशनिंग क्या करनी है, तो सेंटर टू सेंटर करना है, इंटरनल ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन, तो यू कैन हैव एनी पोजीशनिंग व्हिच अकॉर्डिंग टू यू। अदरवाइज आप इसको मैनुअली भी जो है वो प्लेस कर सकते हैं। तो मैं इसको इंटरनल ओरिजिन टू ओरिजिन जो था मैं उसी का बाय डिफॉल्ट इसको रख के और मैं इसको ओपन करवा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करवाता हूँ तो देखिए ये कैड का प्लान मेरे पास एक आ गया, और मैं अगर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसको आप इस वक्त मूव नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि फाइल आपकी पिंड हुई भी होती है। पिंड फाइल का मतलब जो उस पिंड फाइल को जो है वो पहचानने का तरीका है वो ये होता है कि उस पर ये पिन का एक ऑप्शन आ रहा होता है। तो व्हाट यू कैन डू, या तो आप इसको अनपिन कर दें और जैसे अब आप अनपिन करेंगे अब आप इसको मूव करवा सकते हैं और वापस आप इसको पिन कर सकते हैं। और इट्स नाइस कि ये पिंड है, अदरवाइज जो है वो ये आपके साथ इशू ये होता है कि ये बार बार जो है वो कोई हिला देता है और आपकी तमाम प्लानिंग की जो चीजें हैं वो खराब हो सकती है। तो लेट से ये कैड की एक जो है वो इनिशियल प्लानिंग है जो कि मैंने कैड पे जो है वो की है, और इस कैड की जो प्लानिंग है मैं इसका 3D मॉडल क्रिएट करना चाह रहा हूँ और वो मैं रिविट पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो लेट्स सी कि हाउ कैन वी गेट स्टार्टेड फ्रॉम दैट। अच्छा, जब आप इस लिंक की तरफ जा रहे हैं तो ये इसको एक आउटलाइन जो है इसकी वो हाईलाइट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर आप अपने पास यहाँ स्टेटस बार में जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट लिंक्स का, ये चेक हुआ है। अगर आप इसको अनचेक कर दें तो देखें मेरे पास यहाँ पे लिंक है सिलेक्ट एलिमेंट बाय फेस, सिलेक्ट पिन्ड एलिमेंट्स, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो मौजूद है। और ये सेम ऑप्शन आप यहाँ सिलेक्ट के पास यहाँ पे आके इनको यहाँ से इनको ये सेम ऑप्शंस को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट लिंक्स को जैसे ही ऑफ करता हूँ तो अब जो है वो ये इस पर्टिकुलर लिंक को जो है वो मेरे पास ले रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली अब लिंक नहीं है। ये आपकी जो है वो इस वक्त फाइल जो है वो ये इम्पोर्टेड है, आई एम सॉरी अबाउट दैट। अगर ये लिंक होता, यानी कि अगर मैं ये कैड की फाइल को लिंक करवाता तो ये इस वक्त ये इसकी हाईलाइट नहीं करता, बट फॉर द टाइम बीइंग ये इसको हाईलाइट कर रहा है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिलेक्ट एलिमेंट्स, सिलेक्ट पिन्ड एलिमेंट्स। ये जो सिलेक्ट पिन्ड एलिमेंट्स का ये जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर दें तो नाउ ये अब आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा जो हम उसके पास आ रहे थे तो उसको पिक कर रहा था। ओके, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मॉडलिंग। अच्छा, मैं सिंपल इस वक्त मॉडलिंग कर रहा हूँ, कुछ अभी मैं आपको लेवल्स, ग्रेड्स और इसके हवाले से कुछ नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको इसका बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड विद योर प्रोजेक्ट, और उसके बाद आप उसको किस तरह से जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। तो मैं आर्किटेक्चर टैब में जा रहा हूँ, आर्किटेक्चर टैब में वॉल पे जा रहा हूँ, जाहिर है मैंने वॉल से स्टार्ट करना है। अच्छा, अब जरा आप इसका पावर देखें कि कैड की फाइल है, लेकिन अगर मैं अपना फॉर एग्जाम्पल कैड की फाइल होने के बावजूद अगर मैं अपने पास किसी वॉल को मतलब वॉल को प्लेस कर रहा हूँ तो देखें ये उसको स्नैप कर रहा है, ये इसके स्नैप कर रहा है, इसकी सेंटर लाइन स्नैप कर रही है, तमाम चीजें जो है वो ये यहाँ पे कर रहा है जो कि आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये पावर है बिम का कि आप कैड की फाइल से बड़ा आसानी से जो है वो रिविट में आकर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस आपको तमाम जो मॉडलिंग एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है वो सही तरह से करना, और वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपने कहाँ किस जगह पे किस चीज को मॉडल करना है, अदरवाइज तमाम चीजें जो है वो आपकी इसमें सेम है। तो मैं जल्दी से जरा इसकी आपको मॉडलिंग जो है वो स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह से मॉडलिंग कर सकते हैं। तो मैं अपने पास ये जो थिक वॉल आप देख रहे हैं तो ये एक्सटीरियर वॉल्स हैं, मैं अपने पास एक्सटीरियर वॉल यहाँ पे ले लेता हूँ और ये वॉल जो है वो मेरी यहाँ तक जा रही है। अच्छा देखिए, जैसे जैसे मैं वॉल लगाता जा रहा हूँ तो वो बैकग्राउंड उसका ब्लैक एंड व्हाइट होता जा रहा है, तो इस तरह से मुझे समझ में आ रहा है कि किस वॉल को मैंने लगा लिया है
और कौन सी वॉल मेरी रहती है। इसके अलावा मैं एक वॉल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जो यहाँ तक आ जाती है। मैं अगर इसको यहाँ पे जाके अपने पास एंड करता हूँ तो नाउ आई हैव इट ओवर हियर, और आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इसका सेंटर इसने मतलब इन दोनों वॉल्स के जो ज्वाइन है तो रिवेट ने ऑटोमेटिकली क्लीन अप कर दिया। तो ये ये जो है वो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इसको पता है कि ये वॉल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई लाइन वर्क है। लिहाजा ये क्या कर रहा है, जब भी आप कोई लाइन वर्क यानी कोई भी वॉल स्ट्रक्चर अपने पास बनाएंगे, ये हमेशा उसके जो मतलब जो उसके ज्वाइंट्स हैं ये हमेशा उनको क्लीन अप ऑटोमेटिकली करेगा, अनलाइक अदर टूल्स जो कि आप इसके हवाले से यूज करते हैं। अच्छा, अब हमने बाकी वॉल्स को मॉडल करना है, तो जरा देख लेते हैं कि बाकी वॉल की थिकनेस कितनी है। तो मैं अपने पास यहाँ क्विक एडजस्ट टूल बार में मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस की कमांड पे जा रहा हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। मैं जरा देखना चाह रहा हूँ कि वॉल की थिकनेस कितनी है। तो ये 6 and 1 by मतलब 6.25 इंचेस जो है वो उसकी जो है वो ये आपकी थिकनेस है। तो मैं अपने पास वॉल्स में जाके देख लेता हूँ कि ये वॉल मेरे पास कहाँ पे मौजूद है। तो मैं जाकर जो है वो इसको 6 and 1/8 में यहाँ पे ये वॉल ले लेता हूँ और इसको जो है वो मैं अपने पास मॉडल करना स्टार्ट कर देता हूँ जहां तक भी ये जा रही है। फॉर एग्जांपल तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, अब आपने क्या करना है, इस वॉल को और इस वॉल को आपस में एक दूसरे से मर्ज करना है। तो याद रखें कि रिविट में एक कमांड है आपके पास जिससे आप सेंटर्स को मतलब कॉर्नर्स को क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट आई वांट कि आपने इन दोनों वॉल्स के दरमियान कॉर्नर क्रिएट करना है। तो आप मॉडिफाई टैब में आते हैं, मॉडिफाई टैब में आने के बाद यहाँ पे ट्रिम एंड एक्सटेंड की एक कमांड है जो कि कॉर्नर्स एक्चुअली क्रिएट करती है। फिलहाल मैं जो आपको इसका पर्पस जो इसकी एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ वो कॉर्नर्स क्रिएट करना है। तो आप इस कमांड पे जाते हैं और आप एक इस वॉल को पिक करते हैं और आप इसको पिक करते हैं तो ये नाइसली इसको जो है वो क्लीन अप कर देगा। इसके बाद मैं देख लेता हूँ कि बाकी जो है वो वॉल की क्या थिकनेस है। तो अब ये इसकी वॉल की जो थिकनेस हो गई वो ऑलमोस्ट 4 इंचेस की जो है वो वॉल है। तो अपने पास वापस से वॉल टैब में जाते हैं और अब देख लेते हैं आपके पास 4 इंचेस की जो है वो कौन सी वॉल है। तो आप इस वॉल को ले लें, इस पर्टिकुलर वॉल को, और अब इस वॉल को लेते हुए आप अपनी मॉडलिंग को जो है वो स्टार्ट कर दें। एक वॉल यहाँ तक आ गई, इसके अलावा एक वॉल जो है वो आपकी यहाँ तक आई और इसके बाद एक वॉल फिर यहाँ आ जाती है। इसके अलावा एक वॉल जो है वो आपकी बाहर से ही मतलब जो है वो स्टार्ट होती है और ये जो है वो आपकी यहाँ तक आ जाती है। इसके बाद यहीं से ये वॉल स्टार्ट होती है तो यहाँ पे आ जाती है। और इसके अलावा इसको अब आप कंटिन्यू करें मॉडलिंग को, एक जो है वो आपकी वॉल यहाँ इस सेंटर तक आके, इसके अलावा ये पूरी आपकी एक्सटर्नल तक जो है वो चली जाती है। ये वाली वॉल मेरे ख्याल में ये जो है वो इसकी थिकनेस ज्यादा होगी, तो इस वॉल को आप जो है वो अपने पास वापस से 6.5 इंचेस का कर लें। और बाकी जितनी भी आपकी वॉल्स हैं आई गेस इसको भी जो है वो आपको सेम ही रखना पड़ेगा। ये भी जो है वो आपकी 6.25 नॉट दैट बट इसकी मेरे ख्याल में थोड़ी कम है 5 and something। और इस तरह से आप इसको आगे ले जाते हुए और इसकी जो है वो मॉडलिंग स्टार्ट कर लें। अच्छा, अब मैं जरा 3D व्यू में जस्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 3D व्यू में हो क्या रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी मॉडलिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा, 2 वॉल्स आपकी जो है वो आपके लेवल से जो है वो आउट हुई हुई हैं, तो ये हम बाद में कर सकते हैं, इसका इतना जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है, वी कैन ऑलवेज डू दैट। तो वापस में आप लेवल में आके और इस वॉल को जो है वो अपने पास एक्सटेंड कर लें। तो ये वाला वॉल जो है वो आपकी यहाँ तक क्रिएट हो गई। अब इसके अलावा जो इंटीरियर पार्टीशन वॉल्स हैं आप उनको क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सटीरियर अगर आप देखें तो हमने एक्सटर्नल बाउंड्री को तो अपने पास जो है वो क्रिएट कर लिया। और ये आपकी जो 2 वॉल्स हैं यानी कि जितनी भी वॉल्स हैं, इसका एक तरीका क्या है कि आप किसी भी एक एक्सटीरियर वॉल पे क्लिक करें और टैब की कमांड दबा दें। जब आप टैब की कमांड दबाएंगे तो वो उन तमाम वॉल्स को जो है वो आपके पास क्रिएट कर मतलब सिलेक्ट कर लेगा। और इसकी प्रॉपर्टीज में आके आप इसको कह दें कि ये लेवल 1 पे है, यानी कि इसका लेवल यानी कि बेस जो इसका है वो लेवल 1 है और इनका जो टॉप कंस्ट्रेंट होना चाहिए वो लेवल 2 होना चाहिए। तो मैं इसको लेवल 2 पे कर देता हूँ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लेवल 2 है कहाँ। तो लेवल 2 बेसिकली एलिवेशन है, मतलब उसका लेवल है और लेवल्स को देखने के लिए आपको किसी एलिवेशन व्यू में होना चाहिए। तो यहाँ मैं साउथ एलिवेशन में चला जाता हूँ और ये साउथ एलिवेशन में जाके मैं देख सकता हूँ कि ये इसका बेस लेवल 1 है और ये इसका जो लेवल है वो आपका लेवल 2 आ रहा है। तो ये अब आपको चीज यहाँ से इस तरह से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी कि हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ओके, इसके बाद आप अपनी मॉडलिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको वापस यहाँ ले जाता हूँ और इसके अलावा आप अपनी जितनी मॉडलिंग के हवाले से चीजें, इस वक्त मैं कोई डोर्स विंडोज के हवाले से तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी मॉडलिंग जो है वो स्टार्ट करके और अब जितनी भी इंटीरियर वॉल्स हैं आप इनको जो है वो मॉडल कर सकते हैं बिल्कुल नाइसली जिस तरह से जो है वो आपके पास चल रही है। और इसको मैं यहाँ ले जाके और ये बायफोल्ड डोर वगैरह यहाँ पे लगेंगे, एक मैं इधर दे देता हूँ,
इसी के साथ किसी भी वॉल को जरूरी नहीं है कि आप बार बार आके वॉल टैब में आके वॉल को क्लिक करें, आप किसी भी वॉल को राइट क्लिक करके और इसके बाद क्रिएट सिमिलर की कमांड पे आ सकते हैं। यहाँ से क्रिएट सिमिलर की कमांड पे आते हैं और अब जो है वो आप इस पर्टिकुलर वॉल को जो है वो अपने पास क्रिएट कर लें, इसको जो है वो यहाँ पे ले जाएं और इसके यानी कि मैंने काम क्या किया है, मैंने सिंपल एक कैड की फाइल ली है और उस कैड की फाइल से मैंने उसका पूरा रेविट का जो है वो एक 3D मॉडल अपने पास क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। एंड यू कैन सी के कितना टाइम लगा मुझे, इट डिडंट टेक मी अ व्हाइल, ये मतलब काफी क्विकली जो है वो ये प्रोसेस है जो कि आप अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी, मैं बाकायदा इसकी बिल्कुल एक्यूरेसी से जो है वो इस वक्त एक्यूरेसी पे इतना ध्यान नहीं दे रहा, मैं जस्ट उसके मॉडल पे ध्यान दे रहा हूँ, तो आप जो है वो इसकी एक्यूरेसी भी मतलब अचीव कर सकते हैं। तो अब आप अपने पास अगर 3D व्यू में जाएं तो नाउ दिस इज एक्चुअली द पर्टिकुलर बिल्डिंग जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और इसकी एटलीस्ट मैंने जो वॉल का स्ट्रक्चर है वो अपने पास जो है वो क्रिएट कर लिया। ओके, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी वॉल है उनको आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी अभी तो जैसे मैंने तमाम लेयर्स को जो है वो इस वक्त लोड करवाया था, मैंने तमाम लेयर्स को मैं ले आया था कैड को, अगर आपको याद हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सिर्फ अपनी जिन जो आपकी वॉल की लेयर है सिर्फ आप वो अपने पास ले आए ताकि सिर्फ आपकी वॉल्स नजर आए और बाकी डोर्स विंडोज अगर आप समझते हैं कि ये आपको इनकी जरूरत नहीं है तो ये आपके पास जो है वो मतलब आप इनको हाइड भी करवा सकते हैं। स्टिल आप ये काम कर सकते हैं वो ऐसे कि आप अपने सिलेक्ट पे जाकर सिलेक्ट प्रिंट ऑब्जेक्ट्स को अनसिलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप तमाम जितनी भी मतलब इसकी कोई लेयर वगैरह अगर आपने डिलीट करनी है तो उस वक्त ये आपको बता रहा है कि ये तमाम लेयर जो है वो इस पे मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल ये सैनिटरी की लेयर है, ये कोई इक्विपमेंट की लेयर है, ये कोई और मुख्तलिफ जो भी आपको लगता है इसमें जो लेयर्स हैं वो आप पिक करें और इनको जो है वो डिलीट करवा दें। तो देखें वो तमाम जो सैनिटरी के हवाले से चीजें थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। बट माइंडेड कि एक बार आपने डिलीट करवा दी तो देयर इज नो अदर वे टू कमिंग बैक ओवर हियर। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप लोग लेयर अपने पास लोड करवा के रखें, मतलब लेयर सारी रखें लेकिन उनकी विजिबिलिटी को ऑफ करवा दें। तो फिर उसका एक अलग तरीका है कि अब आप विजिबिलिटी को किस तरह से उसमें अपने पास जो है वो ऑफ करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने वॉल्स लगा ली, याद रखें मैं आज की क्लास में आपको वॉल्स लगाना नहीं सिखा रहा, ऑब्वियसली ये तो हमारे सेशन में मौजूद है कि हमने किस तरह से वॉल्स लगानी है। मैं आज आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हाउ कैन यू एक्चुअली गेट स्टार्टेड विद योर रेविट प्रोजेक्ट, कि आप कोई सा भी अपना कैड का अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है आप उसको लें और उसके जो है वो आप बिल्कुल जो है वो वॉल्स जिस तरह से हमने वॉल्स को जो है वो लगाना, सिंपली मैंने सिर्फ वॉल में आज आपको जो कमांड सिखाई है वो ये पिक वाली सिखाई है, लाइन वाली। मैं इस वक्त और किसी भी कमांड पे नहीं गया क्योंकि जब हम वॉल को बाकायदा करना सीखेंगे तो हम इसकी बाकी एस्पेक्ट्स को भी जो है वो ओवरव्यू करेंगे। बट फिलहाल मैंने सिर्फ सिंपलेस्ट कमांड पे बताया जो कि लाइन है, एंड आई होप कि आप सब जो है वो इस लाइन की कमांड को अपने पास जो है वो यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, अब इसके अलावा कोई डोर्स वगैरह के हवाले से चीजें हैं तो मैं जो है वो अपने पास आर्किटेक्चर टैब में ही रहते हुए डोर की कमांड पे जाता हूँ। अच्छा, जब डोर की कमांड पे मैं आता हूँ तो इस वक्त मेरे पास अगर देखें तो मेरे पास सिर्फ एक सिंगल फ्लैश डोर है और एक बायफोल्ड डोर है और मेरे पास और डिफरेंट डोर्स नहीं है। अब मैं जरा इसी चीज से आपको एक नई चीज जो है वो बताता हूँ जो कि लोड फैमिली का कॉन्सेप्ट है। यानी कि रेविट में याद रखें जब आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो उसमें तमाम फैमिलीज लोडेड नहीं होती, आपको लोड करवानी पड़ती है बिम लाइब्रेरी से। अच्छा, बिम लाइब्रेरी ऑटोडेस्क में आपको वैसे ऑलरेडी जो है वो अपने पास उसका जो है वो एक ऑटोडेस्क का जो है वो अपने पास पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर है जिसमें आपको ऑलरेडी उन्होंने लाइब्रेरीज दी हुई है। और वो आप कहाँ से आ सकते हैं, आप अपने पास लोड फैमिली में आए तो अगर आप लोड फैमिली में आए तो देखें ये तमाम इंपीरियल लाइब्रेरीज हैं। इसमें आप देखें तो विंडोज हैं, टाइटल ब्लॉक्स और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर बीइंग सेपरेटेड इन स्पेशल फोल्डर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी विंडो में जाके देखना है तो ये मुख्तलिफ टाइप के विंडोज आपकी लाइब्रेरीज हैं। दिस ह्यूज लाइब्रेरी ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट्स जो कि आपको ऑटोडेस्क में ऑलरेडी दी हुई है। स्टिल आपकी हर कंपनी की अलग बिम की लाइब्रेरीज होती हैं जिनमें वो जो मोस्टली फैमिलीज को यूज करती हैं वो उनको जो है वो वहाँ पे प्लेस करती हैं। तो मैं यहाँ डोर्स पे चला जाता हूँ और अब मैं डोर्स पे देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ मुख्तलिफ टाइप के डोर्स हैं जिनमें कर्टन डोर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये फर्दर 3 फोल्डर्स में डिवाइडेड है, रेजिडेंशियल, हार्डवेयर और कमर्शियल। तो मैं यहाँ रेजिडेंशियल पे जाता हूँ और रेजिडेंशियल में जाके मैं इंटीरियर डोर जो है वो चाह रहा हूँ, इंटीरियर सिंगल पैनल डोर, मैं इस डोर को अपने पास लोड करवा लेता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ, एक और एक्सटीरियर डोर मुझे चाहिए तो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और नीचे आके मैं देखता हूँ यहाँ मुझे एक्सटीरियर डोर कहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ एक्सटीरियर डोर पे आता हूँ तो डोर एक्सटीरियर डबल ग्लास, और ये जो है वो डोर मैं इसको एक और अपने पास लोड करवा लेता हूँ। तो ये 2 डोर्स मैं अपने पास लोड करवा लेता हूँ, मैं इनको ओपन करवाता हूँ। अच्छा, अब मैं जैसे ही इनको ओपन करवाऊंगा तो मुझे बताएगा कि देखिए फैमिली एक है लेकिन उसके साइजेस बहुत सारे हैं।
तो डू नॉट डू दिस कि आप इररेलेवेंट साइजेस को अपने पास प्रोजेक्ट में लोड करवा लें। लेट्स से अगर आपको लगता है कि सिर्फ आपके प्रोजेक्ट में जो डोर एक्सटीरियर यूज होगा वो इन 3 टाइप में से कोई एक यूज हो सकता है, जाहिर है बाकी तो बहुत छोटे हैं, वो यूज ही नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप डोर इंटीरियर में चले जाएं तो उनमें भी लास्ट की सिर्फ 3 टाइप्स आपके पास यूज होंगी, तो सिर्फ इन्हीं को लोड करवाएं, वरना आपके पास इतनी सारी चीजें प्रोजेक्ट में लोड हो जाएंगी और आपका प्रोजेक्ट हैवी हो जाएगा। तो ऑलवेज टेक केयर अबाउट दिस थिंग कि लोड से आप उसी चीज को करवाएं जिसको आपने अपने पास प्रोजेक्ट में यूज करना है। ओके, अच्छा जी, ये मैंने लोड करवा लिया अपने पास डोर। अब मैं डोर पे जाता हूँ तो मेरे पास सिंगल इंटीरियर डोर है, 36 बाय 96 का भी है। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ जाके देखता हूँ 32 बाय 96 का जो साइज का डोर है, और इस वक्त अगर मैं यहाँ जाऊँ तो ये वैसे तो थोड़ा साइज से बड़ा है, लेकिन मैंने थोड़ा साइज बड़ा ले लिया, बट मैं स्टिल इसी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ अपने पास। और मैं जाके इसको प्लेस करता हूँ तो ये एक डोर मेरे पास यहाँ जाके इसने प्लेस कर दिया। सिमिलरली अब आप इधर अगर इस वाले डोर की पोजीशन देखें तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज है, तो आप अपने पास स्पेस बार दबा के इस ओरिएंटेशन को अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो मैंने यहाँ इस ओरिएंटेशन को अचीव कर लिया। सिमिलरली मैं अपने पास इधर आता हूँ, यहाँ पे मैंने ये डोर इंट्रोड्यूस कर लिया, और मैं इस वाली वॉल पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने इस डोर को अपने पास इंट्रोड्यूस कर लिया। इसी तरह से मैं इधर आके मैंने यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे ये डोर यूज कर लिया। और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं तो ये एक्सटीरियर साइड का एक डोर है, इसको जो है वो आप ये मतलब इसका साइज बड़ा है, 32 इंचेस से ज्यादा है, लेट्स से 36 इंचेस का डोर है शायद, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं अपने पास। तो ऑलमोस्ट ये 36 इंचेस के डोर पे आ रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ पे वापस 32 इंचेस के डोर को यूज कर सकते हैं। तो ये जाके स्पेस बार से याद रखें, स्पेस बार ओरिएंटेशन चेंज करता रहेगा, तो यहाँ पे आप अपने पास ये डोर दे सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ जगहों पे बायफोल्ड डोर भी है, तो मैं यहाँ पे जाके अपने टाइप में जाता हूँ, इस पे बायफोल्ड डोर पे जाता हूँ, और मैं यहाँ जाके एक बायफोल्ड डोर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, जैसा दिया हुआ है इधर प्लान में जैसा बताया हुआ है। सिमिलरली एक बायफोल्ड डोर जो है वो मेरे पास यहाँ आ जाता है। और इसके अलावा मैं एक डोर जो एक्सटीरियर डोर है वो और यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो ये एक्सटीरियर डोर पे जाता हूँ मैं, और एक्सटीरियर डोर पे जाके मैं यहाँ पे जाके एक अपना डोर जो है वो एक्सटीरियर ऐड करवा लेता हूँ। अब अपने पास जब मैं 3D व्यू में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें डोर्स वगैरह जो है वो अपने पास ऐड करवा ली। एक डोर यहाँ पे मेरे पास एक और यूज होगा, जो कि ये डबल बायफोल्ड डोर है यहाँ पे, लेकिन चूंकि मेरे पास डबल बायफोल्ड डोर है नहीं, तो मैं उसका मतलब फिलहाल मैं हल ये निकाल रहा हूँ उसका कि मैं यहाँ पे दो जो है वो बायफोल्ड डोर अपने पास जो है वो दे देता हूँ फिलहाल, और ताकि सिर्फ चीज समझ में आ जाए। और हम इसको डिलीट कर देते हैं, सिर्फ एक बायफोल्ड डोर जो है वो मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अब आप अपने पास देख सकते हैं कि क्या आपका बकायदा पूरा जो भी प्लानिंग जो आपने कैड से लेके आए थे वो पूरी मैंने आपके मतलब उसको मैंने पूरा जो है वो रिविट पे विद इन सम टाइम जो है वो मॉडल कर दिया। और जाहिर है अभी इसकी डिटेलिंग आप करेंगे, अभी तो ये बड़ा बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है, अभी आप इसको बकायदा, ये तो अभी कॉन्सेप्ट है एक तरह से, अब आप इसको बकायदा डिटेलिंग देंगे, इसकी वॉल की डिटेल्स, इसकी यूज की डिटेल्स, के मटेरियल की डिटेल्स, ये तमाम जो है अब आप इसमें देना स्टार्ट कर देंगे। और अगर मैं इसका जो व्यू है, जैसे इस वक्त अगर आप देख सकते हैं तो ये हेडन लाइन में हुआ है, अगर मैं इसको शेडेड में करता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि ये आपका प्रोजेक्ट जो है उस तरह से स्टार्ट हो सकता है। और अब आप इसके बाद जो है वो विंडोज आपने देनी है, फ्लोर्स देने हैं, रूफ देनी है, फिर आपके मुख्तलिफ फिक्चर्स हो गए, प्लम्बिंग फिक्चर्स आ गए। जैसे अभी मैंने इसमें कोई प्लम्बिंग फिक्चर इस वक्त नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग अपने पास इसमें प्लम्बिंग फिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। वो हम थ्रू आउट द क्लासेस फिर हमारी जब इंशाल्लाह आगे प्रोसीड होंगी तो हम देखेंगे कि किस तरह से आप वो बाकायदा प्लम्बिंग फिक्चर्स और इन चीज़ों को अपने पास लेकर चल सकते हैं। But this was just a very basic overview of the whole Revit environment and how you can get started with Revit. अब मेरी आप लोगों को नेक्स्ट सेशन से पहले एक एडवाइस और एक एडवाइस समझ लें, वो ये होगी कि यू कैन ऑलवेज टेक एनी स्मॉल प्रोजेक्ट जो कि कैट पे बना हुआ हो, आप सिंपल ये करें कि आप उसको अपने पास रिविट में लिंक करवा लें या इंपोर्ट करवा लें, एक ही बात है। मतलब लिंक और इंपोर्ट में थोड़ा सा फर्क है जो हम आगे जाके इसको देखेंगे क्या फर्क है, लेकिन फिलहाल मैंने इंपोर्ट ही करवाया तो आप भी इंपोर्ट करवा लें। बट मेक श्योर को कि वो प्रोजेक्ट कोई छोटा सा एक मतलब कोई एक फ्लोर प्लान हो और वो छोटा एक कोई एक प्रोजेक्ट का फ्लोर प्लान हो। डो नॉट ट्राई कि कोई बहुत बड़ा स्टार्ट आप ले लें और बहुत बड़े प्रोजेक्ट से ले लें, कोई छोटा सा उसमें आप प्रोजेक्ट में उसको अपने पास कैड में इंपोर्ट करवाएं। इंपोर्ट करवाने के बाद जस्ट आप सिंपल उसमें वॉल से मॉडलिंग स्टार्ट कर दें। अच्छा, जरूरी नहीं है कि उसकी बिल्कुल थिकनेस आप एग्जैक्ट रखें, फिलहाल आप जो भी वॉल लगाना चाहें उसकी तरफ लगा लें, उसकी थिकनेस पे मत जाएं। आई जस्ट वांट कि आपको कैड से रिविट में लाकर मॉडलिंग करना स्टार्ट, मतलब उसकी स्टार्टिंग जो है वो आपको समझ में आ जाए। सो दिस इज अ वेरी स्मॉल टास्क बिफोर योर नेक्स्ट क्लास।
और इंशाल्लाह आई होप कि ये जब आप टास्क को करेंगे तो इसके दौरान जो भी आप चीज़ें फेस करेंगे वो फिर आप नेक्स्ट क्लास में जब रखेंगे तो आपकी फर्दर और चीज़ें उसमें जो है वो क्लियर होती रहेंगी। मेरे पास चैट में कुछ क्वेश्चन आए हुए कि मैं साइज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास एक आया है कि साइज किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अभी इसका साइज का जो है वो बता देता हूँ। डोर्स के हवाले से मेरे पास आया है कि डोर्स को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो अगेन मैंने आपको जैसे स्टार्ट की क्लास पे बताया था कि आप जो है वो फैमिली क्रिएट करेंगे, तो फिर आप डिजाइन डोर्स का मतलब ये है कि फिर आप जो है उसकी फैमिली क्रिएट करेंगे डोर्स की, और वो थोड़ी एडवांस मतलब पैरामीटर्स की तरफ बात चली जाती है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ आपको बता दूं कि जैसे जो बड़ी बड़ी इसमें कंपनीज हैं जो कि सप्लायर्स हैं, डोर्स के सप्लायर्स हैं या डोर के किसी भी फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ डोर की मिसाल दे रहा हूँ कि कोई डोर के मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट है, तो आप क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स पहले से अपनी जो उनकी प्रोडक्ट्स उनकी फैमिलीज रिविट की बनाकर रखी हुई है उन्होंने वेबसाइट पे, तो वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट के बारे में भी बताया था। मैं यहाँ बिम ऑब्जेक्ट पे आप चले जाएं तो यहाँ से आप फ्री बिल्कुल बिम की जो डेटा है और जो बिम की लाइब्रेरीज हैं वर्ल्ड वाइड, आप यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाकर जिस चीज को भी, फॉर एग्जांपल डोर्स के बारे में मैं लिखता हूँ, तो डोर्स को मैं यहाँ सर्च करता हूँ, तो जितनी भी डोर की मतलब जो भी ये जैसे कंपनी है कोई सुपर डोर्स के नाम से, उन्होंने अपनी फैमिलीज यहाँ पे पहले से बना के रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इन्होंने किया हुआ, इसी तरह पाकिस्तान में भी अब मैंने देखा है कि कंपनीज में ये काफी अवेयरनेस आ रही है, तो उन्हें अपना बिम का जो भी मतलब उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, खासतौर पे जो बिल्डिंग साइट पे जो कंपनीज हैं, तो उनके जो भी बिल्डिंग से रिलेटेड जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी बिम की फैमिलीज बनाकर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे रखी हैं। उसका उन्हें एक फायदा ये होता है कि उनकी मार्केटिंग हो जाती है, दायरे एंड में जब उनका प्रोडक्ट DOQ निकल के आता है तो उनकी प्रोडक्ट का नाम आ जाता है। अब जैसे पोटा का फॉर एग्जाम्पल, पोटा के मैं अपने पास जो है वो जो वॉशरूम का जो भी मेरे पास यूटिलिटीज हैं या जो भी उसके हवाले से सैनिटरी फिक्चर्स हैं, तो अगर मैं पोर्टा की वेबसाइट पे जाता हूँ तो वहां से मैं डाउनलोड करके अपने पास लगा सकता हूँ। तो उससे फायदा ऑब्वियसली कंपनी को है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसकी प्रोडक्ट जो है वो उसकी मतलब जो है वो उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही होगी। तो अब हर कंपनी इस पर्टिकुलर मतलब स्ट्रेटेजी की तरफ आ रही है। ओके, अच्छा, अगेन साइजेस का, जैसे आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि साइजेस में कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो आप फॉर एग्जांपल लेट से ये मैं वॉल इस वॉल को क्लिक करता हूँ, तो ये वॉल मेरे पास इंटीरियर पार्टीशन वॉल है। अब फॉर एग्जांपल इसकी इस वक्त मैं थिकनेस देख रहा हूँ, तो ये 5.5 इंचेस की इस वक्त थिकनेस है। मैं क्या करता हूँ, इसकी एडिट टैब में आता हूँ। याद रखिएगा, एडिट टैब में आके डायरेक्ट एडिट में आके कभी भी उसकी थिकनेस एडिट मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। आपने क्या करना है, मैं इसका रीजन आपको बाद में बताऊंगा, अभी चूंकि हमारी क्लास भी एंड हो रही है, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल आपको इसका रीजन बताऊंगा क्या है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करके फर्स्ट करें 5.5 के बजाय ये आपकी जो वॉल यूज होगी यहाँ पे, सिर्फ इस जगह पे ये 10.5 की यूज होगी। तो मैं जाके इसको ओके कर देता हूँ और मैं अब इसकी एडिट टाइप में जाता हूँ। एडिट टाइप में जाके ये जो 3.5/8 है मैं इसको कर देता हूँ, ये तकरीबन मेरे पास 10/5/8 है। और ये करने के नॉट 10, मैं इसको 9/5/8 इंचेस करता हूँ। तो ये अब तकरीबन ये जो मेरे पास वॉल है, ये मेरे पास, आप इसको यहाँ पे थोड़ा हिट एंड ट्राई करके देख लेंगे वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके 10.5 इंचेस कर रही है। तो मैं इसको 8 इंचेस कर रहा हूँ, तो ये टोटल वॉल की थिकनेस मेरे पास 10.5 इंचेस हो गई। और अब मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास यहाँ पे वॉल है इसकी थिकनेस चेंज हो गई। मैंने यानी उसकी वॉल का जो साइज है वो कस्टमाइज कर दिया। सो दिस इज द वे यू कैन कस्टमाइज द साइज। अगेन एडिट टैब में जाएं, डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट करने के बाद फिर उसके एडिट में आए और यहाँ पे आके उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस की वैल्यूज को चेंज कर लें। अच्छा, इस वक्त मैंने सिर्फ इसकी कोर बाउंड्री की थिकनेस को चेंज किया, बाकी लेयर की थिकनेस सेम है। तो अगर वो लेयर्ड वॉल है तो उसमें थोड़ा ख्याल रखिएगा इस चीज का। ओके, मैं जरा बाकी और मेरे पास चैट में कुछ क्वेश्चन है तो मैं वो क्वेश्चन जो है वो ले लेता हूँ। इंपोर्ट के बारे में मैं अगेन दोबारा श्योर मैं अभी जरा दोबारा इसको जो है वो बता देता हूँ। आई एम श्योर कि मेरी वॉइस आपको आ रही होगी। ओके, सो मैं जो है वो इसका इंपोर्ट वाली जो चीज़ है मैं इसको दोबारा से बता देता हूँ। और अगेन जिन आप में से जिसको भी मसला हो रहा है, कोई अगर किसी ने पॉइंट्स मिस कर दिए तो इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी, तो आप वापस इसको दोबारा से देख के और जो आपकी कोई चीज़ मिसिंग है, अगेन वही बात है कि ऑनलाइन क्लासेस में यू कैन ऑलवेज हैव सम टेक्निकल इश्यूज, तो दैट्स ओके, जब भी हम आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे।
इंपोर्टिंग पे मैं वापस अपनी रिपीट करके क्लास को आज की एंड करता हूँ। तो इंपोर्ट, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट कैट पे जाते हैं आप। अच्छा, अभी तो मैंने कैट इंपोर्ट कर ली थी, मैं इसको जरा डिलीट कर देता हूँ वापस, और डिलीट करने के बाद अब मैं वापस इसको जो है वो इंपोर्ट कैट पे चला जाता हूँ। इंपोर्ट कैट पे जाने के बाद जो भी आपकी कैट की फाइल है आपने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद करंट व्यू ओनली का मतलब ये है कि मैं इस वक्त अगर करंट व्यू ओनली को अनचेक कर दूंगा तो हर व्यू में मुझे वो कैट की फाइल दिखाएगा, यानी कि वो 3D व्यू में भी दिखाएगा, वो लेवल 1 लेवल 2 जितने भी आपके प्रोजेक्ट के लेवल्स हैं सब में दिखाएगा। तो मैंने जब भी इसलिए इस चीज से बचने के लिए मैंने कहा नहीं भाई मुझे और किसी लेवल में नहीं दिखाऊं, मुझे सिर्फ इसी व्यू में दिखाओ। कलर्स को मैंने इन्वर्ट कर दिया, वरना आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी लेके आ सकते हैं। मैंने इन्वर्ट कर दिया कलर्स को। लेयर्स में जाते हैं तो लेयर्स में जैसे अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऑल लेयर्स को करके दिखाया था, बट ऑल्सो यू कैन हैव द विजिबल लेयर्स और यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्पेसिफिक लेयर जिससे उस लेयर को लोड करवाओ। तो मैं इसको जरा स्पेसिफिक कर देता हूँ अभी, तो मैं सिर्फ स्पेसिफाई लेयर की तरफ जाते हैं। इंपोर्ट यूनिट ऑटो, बाकी तमाम चीजें ऑटो है। ओपन कर दें। अब जैसे आप ओपन करेंगे तो देखें ये तमाम लेयर दिखा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि किन लेयर्स को ऑन करवाना है, तो मैं इसको कहता हूँ ये इक्विपमेंट वाली मत लाओ, ये आपकी जो है वो, इसके अलावा इक्विपमेंट ये वाली सैनिटरी फिक्सचर्स की, एनोटेशन एलिमेंट्स की, जीरो लेयर है कोई, इसको जो भी आप समझते हैं जो आपको लेयर हाइड करनी है वो आप हाइड करके इसको ओके कर दें। तो अब आप जैसे इसको लेके आएंगे तो देखें ये अब आपके पास कैट की फाइल जो है वो मतलब इसने इंपोर्ट करवा दी। तो इसमें कोई सैनिटरी फिक्सचर इस वक्त नहीं आया क्योंकि मैंने कोई उस लेयर को इंपोर्ट ही नहीं करवाया जिसमें जो है वो सैनिटरी फिक्सचर्स थे, इससे पहले वाली में आ रही थी। तो ये तरीका है बड़ा आसान सा। अब इसके बाद अब अपने पास सिंपल वॉल में जाएं। वॉल में जाकर जो है वो आप अपनी मॉडलिंग सिंपल स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है कि किस तरह से आपने इसको लेके चलना है, स्नैपिंग वगैरह ये तमाम कर रहा है। तो आई वुड इंकरेज ऑल ऑफ यू कि ट्राई दिस फीचर आउट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि आपके इस पर्टिकुलर चीज के हवाले से जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें हम लोग लेवल्स क्रिएट करना, आज तो मैंने आपको नेविगेट करना नहीं सिखाया क्योंकि आज हमारी बिल्कुल स्क्रैच की क्लास थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अब बाकायदा मॉडल को नेविगेट करना सीखेंगे कि किस तरह से 3D मॉडल को आप नेविगेट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने व्यूज को अच्छा कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने पास मॉडलिंग की दूसरी चीजों को सीख सकते हैं। एंड आई वुड ऑलवेज एनकरेज यू, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर वेलकम, मोर देन वेलकम, कि आप हमेशा जो है वो ग्रुप पे आके क्वेश्चंस कर सकते हैं या नेक्स्ट क्लास में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। आई पर्सनली इंकरेज क्वेश्चंस कि आप लोग क्वेश्चंस करें, क्योंकि क्वेश्चंस करने से आपकी जो भी कंफ्यूजन्स क्लियर होने के साथ साथ अगर किसी और के माइंड में भी वो अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो सकती है। तो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस, सो ऑलवेज कीप क्वेश्चनिंग अबाउट दैट एंड आई पर्सनली इंकरेज दिस प्रैक्टिस। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ये जो पर्टिकुलर लिंक्स मैंने आज की क्लास में आप लोगों से शेयर किए थे ये मैं ग्रुप पे आप लोगों से शेयर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह आप जाकर विम लाइब्रेरीज वगैरह का जिसको कोई किसी को कोई मसला हो रहा है तो वो जाकर अपने पास लाइब्रेरीज वगैरह के हवाले से भी चीज़ों को देख सकते हैं। Again, thank you so much everyone for today's class, and I hope that you learned something. If you have any confusion, our team is always welcome for you. And inshallah, the next I'm quite excited for the next class. जब तक के लिए inshallah आपको उसके बारे में जो उसकी मीटिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएंगी। Okay everyone, so thank you so much. Take care and Allah Hafiz.